हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम और स्वागत है पुरुषोत्तम मंथ में। आज हम पहले श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कोई श्लोक नहीं पढ़ेंगे ना? कहाँ? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। नंबर कितना है? 4638। तो श्रीमद् भागवतम 4638। Okay, Brahma satisfies Lord Shiva. कृत्वारो दक्षिणे सत्यम् कृत्वार दक्षिणे स्वयं पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रकष्टे क्षमालाम् आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वारो दक्षिणे स्वयं पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे क्षमलाम् आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वारो दक्षिणे स्वयं पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे क्षमलाम् आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वारो दक्षिणे स्वयं पादपद्मं च जानुनि बाहुं प्रकोष्ठे क्षमलाम् आसीनं तर्कमुद्रया कृत्वा, having placed, uro, high, dakshine, at the right, swayam, the left, pada padmam, lotus feet, cha, and januni, on his knee, bahum, hand, prakoshthe, in the end of the right hand, Aksham Malam, Rudraksha beads, Asinam, sitting, Tarka Mudraya, with the mudra of argument. Translation and purport by Srila Prabhupada ki. His left leg was placed on his right thigh. And his left hand was placed on his left thigh. In his right hand he held Rudraksha beads. This sitting posture is called Virasana.
He sat in the Virasana posture, He sat in the Virasana, and his finger was in the mode of argument. and his finger was in the mode of ornament. We can also try to sit. His left leg was placed on right thigh, and his left hand was placed on his left thigh. Okay, right hand held Rudraksha beads. Okay, we don't have Rudraksha, we have the Tulsi beads, and this sitting posture is called Virasana. Okay, but the sitting posture described herein is called Virasana according to the system of Ashtanga Yoga performances. In the performance of yoga, there are 8 divisions such as Yama and Niyama, controlling, following the rules and regulations, then practicing the sitting postures, etc. Besides Virasana, there are other sitting postures such as Padmasana and Siddhasana. Practice of these asanas without elevating oneself to the position of realizing the super soul Vishnu is not the perfectional stage of yoga. Lord Shiva is called Yogishvara, the master of all the yogis, and Krishna is called Yogeshvara. Yogeshvara indicates that no one can surpass the yoga practice of Lord Shiva, and Yogeshvara indicates that no one can surpass the yogic perfection of Krishna. Another significant word is Tarka Mudra. This indicates that the fingers are opened and the second finger is raised along with the arm to impress the audience with the subject matter. This is called a symbolic representation, Tarka Mudra, isn't it? So, Shri Chaitanya Prabhum Vande Valapiyadanugraha Tarinnanamatagraho Vyaptam Siddhanta Sagaram. Hare Krishna. तो पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम व्रत की जय। तो हम पुरुषोत्तम व्रत शुरू कर रहे हैं भगवान का दर्शन करके और श्रीमद् भागवत कथा सुन के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वीरासन में बैठे हुए हैं और तर्क मुद्रा में उनका उंगली है। तो ये जो संदर्भ चल रहा है जहाँ पे कैलाश में शिव जी बैठे हुए हैं ध्यान में और ब्रह्मा और देवता आए उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो नाराज थे, नाखुश थे। क्योंकि शिव जी अगर नाखुश हो गए तो फिर वैसे ही क्रोधित होते हैं। आशुतोष बहुत जल्द ही क्रोधित हो जाते, बहुत जल्दी खुश हो जाते और वो प्रलय करने के लिए जाना जाते हैं। तो उनका क्रोध मतलब प्रलय हो गया, तो उनको शांत करने के लिए आए हैं और वो वैसे बैठे हैं अष्टांग योग के वीरासन के मुद्रा में बैठे हुए हैं, वीरासन में बैठे हुए हैं। तो शिव जी है योगीश्वर और कृष्ण है योगेश्वर। योगीश्वर का मतलब है कि योग साधना में वो इतना कठोर रूप से साधना करते हैं, साधकों में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ योग साधक, मतलब उनसे ज्यादा अच्छा साधना और कोई कर ही नहीं सकता, वही योगीश्वर। और योगेश्वर मतलब सिद्धों में से श्रेष्ठ, कृष्ण से ज्यादा सिद्ध कोई है ही नहीं। तो यह है। तो पुरुषोत्तम मंत्र और पुरुषोत्तम व्रत कहाँ से आता है? पुरुषोत्तम भगवान से। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम शिव जी को योगीश्वर कहा जा रहा है और शिव जी सारे योगियों से श्रेष्ठ है और शिव जी के और भी महिमा है, आगे बताया जाएगा। लेकिन उनसे भी कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि सिद्धों में से श्रेष्ठ है। वैसे ही पुरुषोत्तम योग में भी कहा जाता है भगवत गीता में कि 2 तरीका के जीव है, क्षर चाक्षर बचा। क्षर और अक्षर 2 जीव है। गीता के 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। एक्चुअली इस पुरुषोत्तम महीने में कहा जाता है इस 15 अध्याय पढ़ना चाहिए। तो ये एक मौका है, इस अध्याय इस महीने में रोज पढ़िए 15 अध्याय और पूरा याद कर लीजिए।
तो रोज पढ़ सकते हैं पुरुषोत्तम योग। तो कहा जा रहा है इस अध्याय, इस पुरुषोत्तम योग में कि दो तरीके के जीव है, क्षर और अक्षर, और इन दोनों से श्रेष्ठ कौन है? उत्तम पुरुष है भगवान। क्षर मतलब क्या है? जो पतनशील, जिनका पतन है वह है क्षर, और पतनहीन विहीन वह है अक्षर। तो इसका अलग अलग मतलब आचार्यों ने किए। भगवत गीता के टीका में कोई आचार्य कहते हैं ये, हाँ, जैसे प्रभुपाद भी लिखते हैं बलदेव विद्याभूषण जी के अनुसार, क्षर और अक्षर मतलब क्या है कि जिनके पतन नहीं है वो है अक्षर, जिनका पतन है वो है क्षर। मतलब कौन है क्षर? कौन होते कि इस भौतिक जगत के जो जीव है, हम जो है बद्ध जीव, हम क्षर है, पतनशील, पतन होता है हमारा। और जो नित्य सिद्ध जीव है, जो पतन नहीं हुआ उनका, वो है अक्षर। अक्षर नित्य सिद्ध, तो हम बद्ध है, और जो नित्य सिद्ध है क्षर अक्षर। और इन दोनों से श्रेष्ठ कौन है? भगवान पुरुषोत्तम। दूसरा आचार्य ने ऐसे वर्णन किया है कि क्षर मतलब, तो पहला जो क्या बोला, क्षर मतलब भौतिक जगत के जीव है क्षर, और चित जगत के जीव है अक्षर, और भगवान दोनों से श्रेष्ठ है। ये एक व्याख्या है। और एक व्याख्या ये है कि क्षर मतलब हम है, जीव है, और देवता और सारे जीव जो है उनको भी अक्षर कहा जाता है, उनसे श्रेष्ठ है भगवान स्वयं। ऐसा अलग अलग व्याख्यान किया जाता है। तो जैसे भी व्याख्या किए, कोई तो ये भी व्याख्यान करते हैं कि क्षर है जीवात्मा, अक्षर है परमात्मा, और उनसे भी श्रेष्ठ है भगवान पुरुषोत्तम। तो जैसे भी व्याख्यान करते हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन है? पुरुषोत्तम भगवान। तो इन पुरुषोत्तम, तो ये पुरुषोत्तम महीना कैसे आता है? हम जानते हैं कि 365 दिन में होता है एक साल, लेकिन जो सोलर, जो सूर्य के जो गतिपथ है उसके अनुसार ही तो मानते हैं ना। तो कुछ दिन समय, कुछ दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हर 3 साल में जाके वो पूरा 1 महीना हो जाता है। हर 3 साल में तो वो अधिक मास कहा जाता है उसको। अधिक मतलब वो गिनती में तो 12 महीना में 1 साल होता है, लेकिन यहाँ पे 1 महीना एक्स्ट्रा आ जाता है, बोनस, अधिक। लेकिन इस महीने में कोई संक्रांति नहीं है, इस महीने में कोई ऐसा तिथि नहीं है, तो इससे मल मास भी कहा जाता है। तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर समझाते हैं हमें कि 2 तरीका है, एक है स्मार्त और एक है परमार्थ। स्मार्थ जो स्मार्थ लोग हैं उनका 2 तरीका होता है, अलग विचार है, ये करो वो मिलेगा, ये फल करो वो फल मिलेगा, अलग अलग स्मार्थ विधि विधान है। परमार्थ का विचार थोड़ा अलग ही होता है, हटके ही है, मतलब वो अलग ही दृष्टिकोण है। तो स्मार्थ विचार से ये महीने में कोई अच्छे, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ तिथि नहीं है इस महीने में। ये महीना मतलब मल मास कहा गया। मल मतलब क्या? मल मतलब दोष। भागवत अमल पुराण है, कोई दोष नहीं है, तो मल मतलब दोष। तो इससे मल मास कहा गया कि इसमें दोष ही दोष है। इसलिए जो स्मार्थ लोग हैं इस महीने में कोई अच्छा कार्य, शुभ कार्य नहीं करेंगे। लेकिन परमार्थ के दृष्टिकोण से उल्टा है, क्योंकि ये मल मास है और अच्छा ये नहीं है, इसके लिए ये पुरुषोत्तम हो गया। ये भी है कि ये महीना भगवान के पास जाके रोए कि भाई मैं तो मल मास हूँ, मेरा कोई महिमा है नहीं। भगवान बोले नहीं, मैं तुम्हें मेरा नाम देता हूँ, मेरा नाम पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें मेरा नाम दे देता हूँ, तुम पुरुषोत्तम हो, और इस महीने में जो मेरा भक्ति करेगा उसे मैं विशेष कृपा करूंगा। तो हम जानते हैं हमारे लिए कौन सा महीना हम श्रेष्ठ मानते हैं? दामोदर महीना। हाँ, दामोदर व्रत करते हर साल, लेकिन कहा गया दामोदर महीने से भी अधिक महिमाशाली ये पुरुषोत्तम मानते हैं। और 3 साल में एक बार ही आता है, पुरुषोत्तम मानते। तो ये स्मार्थ जो है और परमार्थ है वो दृष्टिकोण अलग ही है। जो स्मार्थ का दृष्टिकोण से अच्छा है, परमार्थ के दृष्टिकोण से बुरा हो सकता है, और जो स्मार्थ के दृष्टिकोण से बुरा है, परमार्थ का दृष्टिकोण वही अच्छा है, मतलब उल्टा पूरा 180 डिग्री उल्टा, क्योंकि ये दृष्टिकोण का विचार है। जैसे ग्रहण, महाप्रभु के जन्म के समय ग्रहण हुआ था, चंद्र ग्रहण, तो लूनार एक्लिप्स।
तो ग्रहण को बहुत अशुभ माना जाता है। अभी भी ग्रहण है उस समय में अच्छा कुछ ये मतलब सिर्फ मतलब कोई कार्य मत करो, ग्रहण का समय अशुभ समय है। तो महाप्रभु के जन्म के समय ग्रहण हो गया, तो फिर महाप्रभु ग्रहण के समय ही क्यों अवतरित हुए थे? दूसरा समय आ सकते थे, क्योंकि ग्रहण के समय लोग इतना हरिनाम कर रहे थे, इतना हरिनाम कर रहे थे, बोले इससे ज्यादा शुभ समय हो ही नहीं सकता। तो भौतिक दृष्टिकोण से यह ग्रहण है, अरे ये तो खराब समय है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यही सबसे श्रेष्ठ समय है महाप्रभु के आने का। उल्टा चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि राहु ने ग्रहण करता है ना, निगल लेता है चंद्र को। तो राहु क्या सोचा कि अकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन सकलंक चंद्रेर आर कोनो प्रयोजन। कि चंद्र जो है, चांद जो है आसमान में, चांद में भी काला काला दाग होता है ना, क्या कहते हैं उसको? चांद का कलंक। चांद में भी कलंक है, ब्लैक स्पॉट्स है, कलंक वाले चांद। तो यहाँ पे श्री गौरांग महाप्रभु अवतरित हो गए हैं। वो कौन है? वो भी चंद्र है, मायापुर चंद्र, नवद्वीप चंद्र, गौरांग चंद्र आविर्भूत हो गए हैं। और उनमें कोई कलंक नहीं है, वो निष्कलंक है, अकलंक है, मतलब महाप्रभु में कोई कलंक नहीं है। तो महाप्रभु कौन सा चंद्र है? अकलंक चंद्र। तो जहां पे अकलंक चंद्र आगे अवतरित हो गए हैं, वहां पे सकलंक चंद्र का क्या जरूरत है? मतलब आसमान में चांद है, उसमें कलंक है, तो कलंक विहीन महाप्रभु जब आ गए तो फिर कलंक वाले, कलंक युक्त चांद का क्या जरूरत है? चलो खा लेते हैं उसको। तो ये बहाना मार के एतो बोली राहु चंद्रे कोरिलो ग्रहण, ये बहाना देके, एक्सक्यूज देके राहु ने निगल लिया, खा लिया चंद्र को। तो यही है ग्रहण। तो ग्रहण के समय इतना लोग तो अरे अशुभ समय, इसलिए सब हरि 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 बोल गौरांग, सब अलग अलग नाम जप कर रहे थे और गंगा स्नान कर रहे थे। महाप्रभु क्या सोचा, अरे ये ऐसे समय है, इससे ज्यादा शुभ समय हो नहीं सकता, इतना पवित्र समय, सब लोग हरि नाम कर रहे हैं, तो चलो अभी इस समय आ जाते हैं। तो ये है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, परमार्थ का दृष्टिकोण, जहाँ पे स्मार्थ के दृष्टिकोण से जो जो अशुभ होता है, परमार्थ के दृष्टिकोण से वही सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो स्मार्थ के ये भी एक दृष्टिकोण है पुरुषोत्तम मंत्र में कि स्मार्थ के दृष्टिकोण से कोई स्मार्थ काम नहीं करेंगे, कर्मकांड का काम नहीं करेंगे। इसीलिए ये अच्छा है, क्योंकि बाकी समय, बाकी महीना जो है ना, लोग कर्मकांड का ये सब, ये व्रत, ये कर्मकांड, ये सब कर करके दूषित कर देते हैं हमारे परमार्थ का दृष्टिकोण का। क्योंकि इस महीने में कोई स्मार्थ काम या फिर कर्मकांड का कुछ नहीं करेंगे, इसलिए भक्ति करने का सबसे बेस्ट टाइम है। मतलब सब कुछ हरिनाम ही करो सर, प्योर भक्ति किया जाएगा। और बाकी महीने में क्या करेंगे? हाँ, भक्ति करेंगे, साथ ही साथ कुछ कर्मकांड का मिश्रण होगा। हाँ, ये करेंगे, वो होगा, अलग अलग होगा। लेकिन इस महीने में कर्मकांड का कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, जो भी करे पारमार्थिक। तो इसीलिए इसे कहा जाता है परमार्थ। मल मास नहीं, हम क्या कहते हैं उसको? पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम व्रत। तो ये है जैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भक्ति में आके वही है, दृष्टिकोण बदलता है हमारा। बाकी लोग स्मार्ट दृष्टिकोण से कितना कुछ होता है। स्मार्ट में हम एक बार बांग्लादेश में गए थे और भक्त सब मिलकर हरिनाम कर रहे थे, हरिनाम में गए, आप भी हरिनाम करते होंगे ना, हरिनाम कीर्तन संकीर्तन करने के एक जगह में सब भक्त मिल, गाड़ी में गए, जाके वहां तुलसी लगा के हरिनाम कर रहे थे। तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए, जरा मतलब एक साथ आ गए। अच्छा, तो आके क्या बोले कि आप लोग ये हरिनाम बंद कीजिए। बोले क्यों, क्या हुआ, क्या समस्या हुआ? तो बोले आप लोग जूते पहन के हरिनाम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, जूते पहन के कर रहे हैं ना, हरिनाम जूते पहन के नहीं कर सकते। अरे साधु लोग आए कहाँ से, यार रास्ते में आप यहाँ आपका जगह में आए हैं, वो देखो ना, रास्ते में कंकर है, ये है, कांटा है, नहीं जूते पहन के नहीं कर। बाद में जूते खुल के सब हरिनाम किया। तो ये है, जूता पहन के नहीं कर सकते, लेकिन हरिनाम करते वो नहीं देखते। तो ये सब स्मार्थ है, ये है, वो है नियम आग्रह, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह, उपदेशामृत में है। नियम आग्रह का मतलब क्या है? एक तो है अग्रह, मतलब नियम मानेंगे ही नहीं, और एक तो है नियम आग्रह, ऐसे नियम मानेंगे, ऐसे मानेंगे कि नियम ही मानेंगे और उसका जो उद्देश्य है समझेंगे नहीं। तो उदाहरण देते हैं कि एक जगह में
दो लोग खेती कर रहे थे, मतलब गार्डनिंग कर रहे थे, बगीचा बना रहे थे, फूल का मतलब बगीचा। तो एक आदमी वो फावड़ा से खड्डा खोद रहा था। मतलब एक सीरियल में करते हैं ना, बोले एक सीधा यहाँ से हम पेड़ लगा के जाएंगे, एक एक के बाद एक सीधा सीधा। तो एक आदमी खड्डा यहाँ पे खोदा, फिर 2 हाथ सामने जाके और एक खोदा, फिर 2 हाथ सामने और एक, मतलब वो उसका काम था खड्डा खोद के जाना, एक के बाद एक, 2 हाथ बाद जाके खड्डा खोद के सामने जा रहा था। उसके पीछे और एक आदमी था, वो आके खड्डा को मिट्टी से भर रहा था। सामने वाला आदमी खड्डा खोद के जा रहा था, और पीछे वाला आदमी खड्डा भर रहा था। ऐसा चल रहा था। तो और एक आदमी जा रहा था, वहां से गुजर रहा था बाजू से, तो उसने देखा, तो आके पूछे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले हम यहाँ पे बगीचा बना रहे हैं, हमें काम दिया गया। बोले अच्छा, तो ऐसे क्या काम कर रहे हो तुम खड्डा खोद रहे हो, ये खड्डा भर रहा है। बोले एक्चुअली हम लोग 3 थे हमारा टीम में, चिंटू मिंटू पिंटू। तो मेरा काम है खड्डा खोदना, और इसका काम है खड्डा भरना, और बीच में एक आदमी था जिसका काम था एक फूल का पौधा रखना। लेकिन वो आदमी का पेट खराब हो गया, आया नहीं काम में। तो होता आया नहीं काम में, लेकिन हम हमारा काम में गुटली नहीं मार रहे, हम चोरी नहीं कर रहे काम में, हम हमारा काम कर रहे। मेरा काम दिया गया था, जिम्मेदारी खड्डा खोदते जाओ, इसका जिम्मेदारी खड्डा भरते जाओ, हम तो कर रहे हैं। अभी बीच का आदमी आया नहीं, वो फूल का पौधा रख नहीं रहा, अब इसका गलती है, हम तो हमारा काम करेंगे। तो ये है नियम आग्रह, हम तो नियम मानेंगे। तो वही यही स्मार्ट मेंटेलिटी आज भक्ति में आने के बाद भी वो जो स्मार्ट एक विचारधारा पहले से था उनमें, हाँ, तो वो भक्ति में कंटिन्यू हो जाता है। भक्ति का जो असली उद्देश्य समझते नहीं, बहुत बार ये है वो है, व्रत है तपस्या है अच्छा है, इसमें भी आ जाते कभी कभी स्मार्ट नहीं, व्रत करना है तो करेंगे। लेकिन जैसे विश्व पंचक है, दामोदर व्रत है, क्या निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी करना अच्छा है, बहुत अच्छा है। जन्माष्टमी है, निर्जला है, अच्छा है। लेकिन निर्जला करते गए ऐसा निर्जला किए है कि प्रभु जी मैं थक गया हूँ, शक्ति नहीं है, अभी माला ही नहीं, हरिनाम ही कर नहीं पा रहा हूँ, या सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा निर्जला किया, लेटे बिस्तर में लेटे निर्जला किया और माला ही नहीं कर पाया, तो ये निर्जला का क्या फायदा है? तो इसमें भी ऐसे स्मार्ट भाव आ जाता है, नहीं निर्जला करना है प्रभु। सामने आ रहा है निर्जला एकादशी कब है? शायद जून में, 11 तारीख शायद है, 11 जून में निर्जला एकादशी है। एकादशी तो हर एक निर्जला करना चाहिए, बेस्ट है, उत्तम है, कम से कम एक निर्जला आता है तो। लेकिन जो भी हो, हाँ, लास्ट टाइम हम जब निर्जला एकादशी के दिन आए थे 4 साल पहले, जब आपका पोखरा में आया निर्जला एकादशी था, अच्छा था। तो जो भी हो, तो निर्जला एकादशी हो या फिर विश्व पंचक हो, तो ऐसे व्रत करेंगे करते करते। हमारे एक चौपाटी में कहा गया, एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने व्रत किए थे ऐसे कि मैं पकौड़ा नहीं खाऊंगा, और 2 साल पकौड़ा नहीं खाए, कोई पकौड़ा नहीं खाया 2 साल। फिर 2 साल बाद सोचे ठीक है अभी मैं अपना व्रत पालन करूंगा, अभी बकरा खा के व्रत तोड़ूंगा। तो एक साथ लगभग 40 पकौड़ा खा गया और बिस्तर में लग गया एकदम खा के, हरी बोल, पेट खराब हो गया। खाया तो खाया नहीं 2 साल, अभी खाया तो खाया, एकदम 40 खा लिया। तो ये है हमारा व्रत, ये है हमारा। तो ऐसा भाव आ जाता है, हम करेंगे तो करेंगे, स्मार्ट भाव आ जाता है। जैसे बहुत सुंदर प्रसंग है चैतन्य चरितामृत में, सार्वभौम भट्टाचार्य। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य एक्चुअली जो स्मार्ट भाव है ना, वो मायावादियों में बहुत ही कट्टर है। वो लोग इतना कट्टर है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उनका नियम में, नियम पालन करने में। हम क्या नियम मानते हैं? मायावादी या स्मार्ट लोग इतना कट्टर है, वो एकदम सुबह सुबह उठ के, मैं मेरे पिताजी को भी देखा बचपन से, वो सुबह सुबह उठ के नहाएंगे, स्नान करेंगे, फिर आके धोती वोती पहन के। तो जब भक्ति में नहीं था तब से, मतलब इस्कॉन से साथ जुड़े नहीं थे, लेकिन वो उनके कुल गुरु से दीक्षित थे, ऐसे करके। तो सुबह सुबह उठ के नहा के धोती वोती पहन के हमारा जो पूजा घर में बैठेंगे, उनका जो गुरु मंत्र है वो करेंगे, जब कुछ कीर्तन करेंगे, भजन गाएंगे, गीता पढ़ेंगे,
हाँ, गीता का श्लोक पढ़ते थे, कुछ ऐसे कुछ आधा घंटा कुछ समय जाता था करते, उसके बाद ये कुछ पानी पीते थे। सुबह के पानी भी नहीं पीते थे, पानी भी नहीं पीना है सुबह एकदम। तो हालांकि आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठ के पानी पीना चाहिए दांत ब्रश करने के पहले। तो ऐसे इतना कट्टर, तो मायावादी लोग इतना कट्टर होते थे या होते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? मायावादियों के गुरु थे वो, तो और कितना कट्टर होंगे। मायावादी सन्यासी लोग आके सार्वभौम भट्टाचार्य से पढ़ते थे और प्रोफेसर अध्यापक थे सार्वभौम भट्टाचार्य, मायावादी सन्यासियों को भी पढ़ाते थे। तो सोच के देखिए कितना कट्टर होंगे वो, स्मार्ट विधि विधान में। तो अभी सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए, महाप्रभु ने भक्त बना दिया उनको। तो और कहा जाता है कि ये सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए ना, ये महाप्रभु का प्रीचिंग का एक टर्निंग पॉइंट था। अभी मान लीजिए आप प्रचार कर रहे हैं आप नेपाल में, अच्छा, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए नेपाल के प्रधानमंत्री को आपने भक्त बना दिया, दीक्षा दिलवा दिया, तो क्या होगा? अरे तो एकदम। तो वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गया, वो एक बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज है। वैसे मायावादी के गुरु थे, इतना बड़ा प्रोफेसर स्कॉलर थे और राज पंडित थे राजा प्रताप रुद्र के वहां पे, तो उनको भक्त बना दिया, वो मायावादी गुरु को भक्त बना दिया। वो मतलब एक ये दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल। वो तब से महाप्रभु का प्रचार आंदोलन और प्रसिद्ध हो गया, कहा जाता है चैतन्य भागवत में, है ना। लोहा के जाबत स्पर्शी हेम नाही करे, ताबत स्पर्श मणि के हो चिन्हित ना पारे। ये मान लीजिए मैंने कहा ये स्पर्श मणि है, ये मेरे पास जो है ये है स्पर्श मणि है। तो स्पर्श मणि मतलब क्या है? लोहा में टच करेंगे वो सोना बन जाएगा। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास एक स्पर्श मणि है, स्पर्श मणि है, स्पर्श मणि है। कब पता चलेगा वो स्पर्श मणि है? प्रूफ क्या है? बोले ये लोहा है, इसमें टच करो ये सोने का जलना बन खिड़की बन गया। हालांकि ये तो एल्यूमिनियम है। मान लीजिए लोहे का टच करो ये सोना बन गया, हाँ स्पर्श मणि है। तो महाप्रभु के बारे में कहा गया कि महाप्रभु जो स्पर्श मणि है, हरिनाम का शक्ति है, भक्ति का शक्ति। कब पता चला? जब सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बना, तब पता चला। तो भक्त बन गया अभी। तो एक दिन सुबह सुबह महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन किए हैं, जगन्नाथ मंदिर, मंगल आरती किए, दर्शन किया। और मंगल आरती के बाद सबको प्रसाद दिया जाता है। आपको दिया जाता है प्रसाद? हमें जगन्नाथ मंदिर में दिया जाता है प्रसाद। महाप्रभु मंगल आरती करते थे रोज और उनको प्रसाद मिलता था। तो हमारे मायापुर में है समाधि, प्रभुपाद समाधि में मंगल आरती होता है, उसका प्रसाद मिलता है, बहुत अच्छा स्वीट मिलता है। तो बोलता हाँ चलो मंगल आरती करते हैं, प्रसाद मिलेगा, स्वीट मिलेगा। तो महाप्रभु का प्रसाद मिला और महाप्रभु उनका उत्तरीय में वो बांध के लेके आए। उनका जो चादर उत्तरीय था उनमें बांध लिया प्रसाद। उस समय तो और ऐसे नहीं, थैला नहीं जचते थे, ठीक है तो जो थैला में दे दो लेके जाते हैं, पॉकेट में नहीं होता था, कुर्ता भी नहीं, तो उत्तरीय में बांध के प्रसाद लेके आए। कहाँ लेके आए? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में लेके आए। अभी घर में लेके आए और तब तक सार्वभौम भट्टाचार्य उठे नहीं थे नींद से, शैया में ही थे। तो महाप्रभु बाहर आके पुकारे, सार्वभौम पुकारे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तब कृष्णा कृष्णा बोल के नींद से उठे। महाप्रभु बहुत खुश हो गए थे, कृष्ण कृष्ण, नींद से उठ के कृष्ण कृष्ण बोल रहे। तो हमें भी नींद से उठ के कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए। तो कृष्ण कृष्ण बोल के वो नींद से उठे, बहुत खुश। तो दरवाजा खोल के बाहर आए, महाप्रभु को देखा, प्रणाम किया, बहुत अच्छा, आलिंगन किया एक दूसरे को। तो बैठने के लिए जगह दिया, स्थान दिया, आसन। तो महाप्रभु उनका वो जो गांठ बांध के प्रसाद लेके आए थे, उत्तरीय खोल के प्रसाद निकाल के सार्वभौम को दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य अभी नींद से उठा, नहाया भी नहीं, ब्रश भी किया नहीं, दांत भी ब्रश नहीं किया, नहाया भी नहीं। महाप्रभु दरवाजा खोला, महाप्रभु को देखा, प्रणाम किया, प्रसाद दिया, वो हाथ में लिए और वो महाप्रसाद का बंधन किए और बंधन करके महाप्रसाद खा लिए। क्या बंधन किए? शुष्कम परिषितम वापि नीतम वा दूरदेशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणः। कि महाप्रसाद, उसका दूसरा लाइन पहले बोलता हूं मैं, दूसरा लाइन बहुत सुंदर है कि महाप्रसाद
प्राप्ति मात्रेन भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। हाथ में पाया मात्र ही महाप्रसाद भक्षण कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए अभी खाऊं या ना खाऊं, अभी समय अच्छा है या ना बुरा समय है, या ये जगह में खाऊं या नहीं खाई, ये स्नान किया या नहीं खाया, ऐसे नहीं। महाप्रसाद हाथ में पाया मात्र ही तुरंत तत्क्षणात प्राप्ति मात्रेन भोक्तव्यम नात्र काल विचारण, समय का विचार नहीं करना, तुरंत ले लेना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है ना ये, बहुत सुंदर श्लोक है, याद कर सकते। वाह, महाप्रसाद प्राप्ति मात्रेन भोक्तव्यम। तो हमारे एक भक्त को ऐसे मंदिर में प्रसाद हलवा या कुछ बांटा जा रहा था, वो मिला उनको, बोले ठीक है। तो वो दूसरे एक प्रभु ये पकड़िए, मैं तेरा हाथ धो के आता हूँ। हाथ धोने गया, आके देखा कहाँ है, बोले नहीं शास्त्र में कहा गया प्राप्ति मात्र, तो मेरा हाथ में आया, मैंने खा लिया। बोले इस्कॉन मंदिर में आप यहाँ पे पैसा या सोना रख के जाइए, आके देखेंगे वो मिल जाएगा आपको, इधर ही गिरा हुआ। हाँ प्रभु जी, फोन भी रख के जाइए, सोना रख के जाइए, पैसा मिल जाएगा, लेकिन प्रसाद अब बैग के अंदर रखिए, आके देखेंगे गायब है। कहाँ से उसका सुगंध आए, कहाँ से भक्त कहाँ से ढूंढ के वो निकल के गायब है प्रसाद। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है प्राप्ति मात्र, लेकिन उसका पहला वाला लाइन क्या है, ये तो दूसरा लाइन है। पहला लाइन क्या है कि शुष्कम पर्युषितम वापी नीतम वा दूरदेशतः, ये सूख गया हो। शुष्क मतलब सूखा क्यों ना हो, पर्युषितम वापी मतलब सड़ गया हो, नीतम वा दूर देश से लाया गया हो। महाप्रसाद सूखा हुआ हो, बासी हो, सड़ा हुआ हो, उसमें स्मेल आ रहा है, कुछ भी हो, महाप्रसाद हाथ में पाया मात्र ही ग्रहण करना चाहिए। यह है पूरा श्लोक का अर्थ। तो क्या हमें इतना श्रद्धा है प्रसाद के प्रति कि अगर सड़ गया हो, बासी हो, गंध आ रहा हो, लेंगे प्रसाद हम वो? यह है पूरी श्लोक। महाप्रसाद बंसीदास बाबा जी महाराज थे, एक महान भक्त बंसीदास बाबा जी महाराज, वो राग मार्ग में थे। तो बंसीदास बाबा जी महाराज इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु भाई थे, वो उनके समय के भक्त थे। तो नवद्वीप में थे, भजन करते थे। तो उनका भजन ऐसे था, अलग ही मार्ग में था। वो उनका गौड़ निताई विग्रह था, तो गौड़ निताई के कमर में रस्सी बांध के गंगा में फेंक देते, जाओ तैर के आओ, स्विमिंग करके आओ, जाओ फेंक देते रस्सी बांध के, जाओ विद्यार्थी को, आप ऐसे मत करना, फेवा लेक में डाल दिया जगन्नाथ को, जाओ स्विमिंग करके आओ। तो ऐसे करते थे बंसीदास बाबा जी महाराज। तो सरस्वती ठाकुर भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो हमेशा दो भक्त को भेजते थे कि आप उनको जाकर प्रसाद देके आओ या फिर एक देके आओ, लेकिन बोले प्रसाद देके दूर से प्रणाम करके आ जाओ, उनके पास मत रहोगे, उनके पास रहोगे तो उनका भक्ति का जो भाव विचार समझ नहीं पाओगे। तो एक भक्त को रखते थे कभी कभी, वो जो ट्रेवल करते थे ना, बंसीदास बाबा जी महाराज अलग जगह में ट्रेवल, तो उनके साथ एक भक्त रखते थे। उनका काम होता था कि जब भी बंसीदास बाबा जी महाराज प्रसाद लेते थे ना, उनका उच्छिष्ट जमा के रखते थे और जमा के वो भेजते थे। वो मतलब नवद्वीप में होते थे उस तरफ, और ये मायापुर में, नवद्वीप से मायापुर भेजते थे उच्छिष्ट। गौड़िया मठ के सारे भक्त लेते थे और उसको, उस प्रसाद को, उनको उच्छिष्ट प्रसाद को पैक करके वृंदावन भेजा जाता था ब्रजवासियों को। तो उस समय तो ट्रेन नहीं था, ट्रेन था लेकिन उतना फास्ट नहीं था अभी जैसे है कि तेजी से सुपर फास्ट ट्रेन राजधानी में पहुंच गया, फ्लाइट में पहुंच गया, नहीं। और प्रसाद लाया, पैक करके भेजते भेजते वृंदावन पहुंचते समय लगता था, कुछ समय तब तक सड़ जाता था। लेकिन सड़ जाता था फिर भी वृंदावन के भक्त लोग सबको वो बांटा जाता था कि मायापुर से आया है, क्या है ये, बंसीदास बाबा जी महाराज की उच्छिष्ट है। और सड़ जाता था, थोड़ा बास आता था, स्मेल आता था, फिर भी सारे भक्त बहुत भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ वो प्रसाद लेते थे, उच्छिष्ट, वैष्णव उच्छिष्ट भोजनम। तो खैर सर्वभौम भट्टाचार्य ने ये प्रसाद ले लिए। न देश नियम न काल नियम, तो महाप्रसाद लेने में कोई नियम और देश का कोई विचार नहीं है, तुरंत ले लिए महाप्रसाद। तो अभी सोचिए, सुबह सुबह उठा, नहाया नहीं, ब्रश किया नहीं, प्रसाद ले लिया। तो महाप्रभु क्या उसमें खुश होंगे? क्या महाप्रभु नाराज होंगे? अरे क्या किया तुम, नहाया भी नहीं, सर्वभौम भट्टाचार्य तुमने ऐसा क्या किया, पता नहीं तुम्हें ये सिंपल सा बात है, नहाना चाहिए, हाँ प्रसाद ले लिया तुमने। हमारा बेस में स्टूडेंट यूथ बेस में एक भक्त था, मैं जब बेस में था तो वो भक्त पूरी रात उस काम करता था कंप्यूटर में,
लगा रहता था और सुबह सुबह सोता था वो। तो कभी कभी मंगल आरती के समय सोता था या फिर कभी कभी मंगल आरती करके सोता था, पूरी रात जगा हुआ करता था और हमारे साथ मंगल आरती भी करता था, मंगल आरती करके जाके सोता था वो। तो और जब भी रात को ही करता था। तो जब द्वादशी का दिन होता था ना, तब भी वो एकादशी के रात की वो जगह रहता था और मंगल आरती के समय कभी कभी उसके समय आधा करके सो जाता था, कभी कभी पूरा करके सो जाता था। मंगल आरती करके सो गया, दूसरा रूम में सोया हुआ है, अभी पारण का समय है, कोई बोला अरे प्रभु जी उठिए उठिए, पारण का समय निकल रहा है, पारण करना है, एकादशी का पारण कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, वो सो रहा है। वो बेचारा वो भक्त है, अभी यंग भक्त है लेकिन शरीर छोड़ दिए कुछ साल पहले, वो भी एक दुर्घटना जो भी हो। तो लेकिन ऐसे था, उठिए उठिए प्रभु जी उठो उठो, तो वो सोया हुआ है। तो बाद में एक भक्त मिलके उसका मुंह खोलता था और एक भक्त कुछ चावल लाके, एक चावल लाके मुंह में डालो और वो वही बोले पारण करो। तो हम तो इसमें आदत है ना, सुबह सुबह बिना नहा के बिना ब्रश के खा लेने में, अगर कल्चर ही ऐसे है, सुबह सुबह उठ के बेड में बेड टी बेड टी चाहे बिस्तर में बैठ के चाय पीना है, ये आदत है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं प्रभु जी, बोले ये 4 नियम पालन करना है, चाय, बोले प्रभु जी चाय नहीं पियेंगे तो कैसे होगा? बोले क्यों? बोले चाय नहीं पीता तो सुबह सुबह स्टोमक क्लियर नहीं होता है। वॉशरूम में जाते हैं हम तो जब तक चाय नहीं पीते तब तक हमारा पेट ही साफ नहीं होता है, ऐसे हो गया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रसाद लिए बिना नहा के, तो महाप्रभु इतना खुश हो गए। महाप्रभु पहले तो उनको पूरे आलिंगन किए और महाप्रभु इतना खुश हो गए, नाचने लगे। तो दोनों एक दूसरे को पकड़ के नाचने लगे, इतना खुश हो गए। बोले इसमें उतना खुशी का बात क्या है भाई, खाली प्रसाद तो खाया, वो हम भी खा लेंगे, आज से हम भी शुरू करेंगे। अगर महाप्रभु इतना खुश हो जाते हैं बिना नहा के खाने का, तो हम भी आज से शुरू करेंगे। सुबह उठ के खाना 4:30 बजे उठ के प्रसाद रेडी, ऐसे करे। तो क्यों ऐसे किए? तो महाप्रभु बोलने लगे कि आजी मोर पूर्ण हইল सर्व अभिलाष, आजी मुई जिनिनु करिनु वैकुंठ आरोहण, आजी मुई जिनिनु सर्व त्रिभुवन। कि आज मैंने मान लो वैकुंठ जीत लिया, आज मैंने मान लो वैकुंठ में चला पा लिया, आज मैं पूरा त्रिभुवन जीत लिया, ऐसे महाप्रभु बोलने लगे। आजी मोर पूर्ण हইল सर्व अभिलाष, सार्वभौमेर हইল महाप्रसादे विश्वास। कि सार्वभौम भट्टाचार्य का महाप्रसाद में विश्वास हो गया, तो आज मान लो मेरा सारे इच्छा पूरा हो गया, मतलब मिशन सक्सेसफुल हो गया। जो मिशन लेके आए थे महाप्रभु इस जगत में, बोले मिशन सक्सेसफुल, मिशन अकम्प्लिश्ड। मिशन इम्पॉसिबल बिकेम पॉसिबल। अभी क्यों? कि सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रसाद में विश्वास हो गया। तो इसलिए ये प्रसाद में विश्वास होना ये कोई आम बात नहीं है। हमारा विश्वास है प्रसाद में। हाँ, वो जो श्लोक बताया था शुष्कम परिशुद्धम वापी, जब वो होगा तब विश्वास होगा। इसलिए रोज हम बोलते, हमारे स्कूल में 2 ही मंत्र है, एक है सोने का मंत्र ओम नमो भगवते और जगने का मंत्र महाप्रसादे गोविंदे। तो रोज बोलते हम महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं बजाए थे। मतलब क्या है? कितना भक्त को पता है उसका मतलब क्या है? ये जो श्लोक है महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं बजाए थे। तो मैं बहुत जगह जब पूछता हूँ ये श्लोक का मतलब क्या है, ये श्लोक, अच्छा ये श्लोक कितने बार बोलते हैं रोज? ये जो मंत्र है कितने बार बोलते हैं? 3-4 बार। वाह, 3-4 बार, बहुत बढ़िया। तो 3-4 बार प्रसाद लेते हैं। हाँ 3-4 बार या बहुत बार, थोड़ा तो भी मिलता है, बोलते ये मंत्र हम बोल के लेते। तो बोलते तो 3-4 बार या कम से कम 2 बार तो बोलते ही है, लेकिन मतलब पता है कितने भक्त को? एक जगह पूछ रहा था इसका मतलब क्या है, कोई नहीं बोल पा रहा था। एक भक्त बोले हाँ महाप्रसाद है गोविंद, महाप्रसाद में ही गोविंद है। तो ये एक है पुरुषोत्तम मंत्र, हम जो चर्चा कर रहे हैं कि स्मार्थ और परमार्थ, ये भी एक मेंटलिटी आ जाए। स्मार्थ का ये भी एक मतलब है कि ना समझ के कुछ करना, बिना समझ के कुछ करना, ये भी स्मार्थ है। तो हम मंत्र तो बोल देते महाप्रसाद गोविंद का मतलब ही पता नहीं है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सिखाया गया रट्टा मार के बोल रहे हैं हम। मंगल आरती किया संसार दवानल, तो कितने भक्त को संसार दवानल के 8 जो मंत्र है स्तबक है उसका मतलब पता है?
तो वो पता करना चाहिए हमें। हम जो गा रहे हैं रोज उसका अर्थ पता होना चाहिए। नरसिंह आरती का नमस्ते नरसिंह मतलब क्या है, तुलसी आरती गा रहे मतलब क्या है, भजन तो गाते हैं हम, भज हुरे मन गा लेते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या हम सोचते ही नहीं। तो ये मतलब सोचना चाहिए, अर्थ क्या है समझना चाहिए, समझ के तब बोले भगवान के पास। बहुत इसका मतलब बहुत कुछ करते हैं हम भक्ति में जिसका मतलब पता नहीं, बाकी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ है शास्त्र में वर्णित है सब कुछ। और भक्ति क्यों करे कैसे अगर समझ के धीरे से करना, अच्छा से करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। ये भी एक स्मार्ट का मतलब होता है कि बिना समझ के हाँ सब कर रहे हो, देख देख के करो। तो इसमें क्या कहा गया, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्म ने वैष्णव, चार तत्व, महाप्रसाद, गोविंद, हरिनाम, नाम ब्रह्म और वैष्णव, ये चार तत्व है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासन एव जायते, जिनका पुण्य कम है, स्वल्प पुण्य वाले लोग इन चार तत्व के प्रति विश्वास नहीं पा सकते। मतलब महाप्रसाद के प्रति विश्वास पाना भी कितने पुण्य, कितना भाग्य के बात है, कितने कृपा होनी चाहिए, तब जाके महाप्रसाद के प्रति विश्वास होता है। प्रभुपाद के समय एक भक्त था, वो कोई सेवा नहीं करता था, तो कंप्लेन किया प्रभुपाद के, प्रभुपाद ये जो भक्त है वो कोई सेवा नहीं करता है, कोई भी सेवा बोलो कोई भी काम वो नहीं करता है, भाग जाता है, बहाना मार के चला जाता है, लेकिन प्रसाद के समय वो आ जाता है ठीक ठाक, प्रसाद लेता है खाली। प्रभुपाद बोले क्या बोला, प्रसाद लेता है ना, बोले हाँ प्रसाद के समय ठीक वो उपस्थित है, हाजिर। तो बोले उतना ही काफी है, बोले वो प्रसाद लेते लेते भगवत धाम चला जाएगा। प्रसाद के प्रति श्रद्धा है वही बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन कितने श्रद्धा है हमारे, तो बोले महाप्रसाद है गोविंद, महाप्रसाद के प्रति श्रद्धा होना, वैष्णव के प्रति श्रद्धा होना, हरिनाम के प्रति और गोविंद के प्रति, वो आम बात नहीं है। बहुत ही कृपा चाहिए, बहुत ही सुकृति, बहुत ही कृपा चाहिए, तब जाके प्रसाद के प्रति विश्वास हो सकता है। हम तो प्रसाद लेते सामने आया प्रसाद, हाँ ले लिया खा लिया, चलो आज क्या बना हमारे सामने, हाँ ये बना पसंदीदा, ये बना, या फिर दूसरा क्या बना, ये कद्दू बना या लौकी बना। हमारे लॉकडाउन का समय मायापुर इंस्टीट्यूट, तो सब लॉकडाउन थे, तो मायापुर इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में जगह में वहाँ पे बहुत ही पम्पकिन कद्दू हुआ था खेती, तो रोज पम्पकिन का ही है, रोज पम्पकिन। साल तो कुछ भक्त तो परेशान हो गए, क्या है रोज पम्पकिन, ये क्या है, इतना हुआ था पम्पकिन। पम्पकिन कद्दू बोलते हैं ना पम्पकिन को, तो बोले इतना कद्दू वाला, ये पागल हो गए कद्दू का, ये कद्दू का, वो रोज रोज होता था लॉकडाउन में पूरा ही। और परवल भी शायद था, हाँ परवल था और ये पम्पकिन था, रोज खाओ। चल रहा था। तो खैर प्रसाद के प्रति जो विश्वास आना, वो भी हम सामने क्या प्रसाद बनाया आज, लेकिन प्रसाद के प्रति कभी भी प्रसाद का दोष नहीं देखना चाहिए। जिन्होंने बनाया प्रसाद, मतलब जानबूझ के तो कोई खराब नहीं किया ना। हाँ अगर रोज कुछ ना कुछ खराब हो रहा है, कोई बना रहे तो कुछ बोलना चाहिए कि भैया रोज ही कुछ ना कुछ कर रहे हो तुम, तो ध्यान से बनाओ। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं जानबूझ के किया, तो ये है, कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, ये हुआ वो हुआ। तो खैर प्रसाद में विश्वास होना वो बहुत बड़ी बात है। और खास करके सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी के गुरु है, उनको प्रसाद में विश्वास हुआ, वो तो बहुत बड़ा एक बात है महाप्रभु के लिए। तो महाप्रभु इतने खुश हो गए, सार्वभौम में रहिल महाप्रसाद विश्वास, आजी कृष्ण प्राप्ति योग्य हইল तुम्हार मन। महाप्रभु बोल रहे आजी कृष्ण प्राप्ति योग्य हইল तुम्हार मन, वेद धर्म लंघी कइले प्रसाद भक्षण, कि आज तुम्हारे मन जो है वो कृष्ण को पाने लायक हुआ, तुम्हारे मन कृष्ण को पाने के लायक हुआ, योग्य हुआ। इतना दिन योग्य नहीं था, ये प्रसाद के प्रति विश्वास नहीं था, कि आज प्रसाद के प्रति तुम्हारा विश्वास हुआ, इसलिए तुम्हारा मन कृष्ण को पाने के लायक हुआ। हम भी प्रसाद के प्रति विश्वास नहीं होगा तो कृष्ण प्राप्ति योग्य होइलो तुम्हार मन, वेदो धर्म लंघी, मतलब वेदो धर्म, ये जो वैदिक धर्म है ना, स्मार्ट विधान है, ये सब तोड़ के तुमने प्रसाद भक्षण किया। आजी निष्कपटे तुम्हें होइला कृष्णाश्रय, कृष्ण निष्कपटे तुम्हा होइला शुद्ध, तुम निष्कपट भाव से कृष्ण के शरण लिए हो, और कृष्ण भी निष्कपट रूप से तुम्हें कृपा किए। समझिए कि
सार्वभौम को बोले तुम निष्कपट होके कृष्ण का आश्रय लिए हो और कृष्ण भी निष्कपट होकर तुम्हें कृपा की है। मतलब कृष्ण का कृपा भी ऐसे निष्कपट होता है और कपट कृपा होता है, सकपट कृपा होता है। दो तरीके का कृपा है। कृष्ण भी कृपा करते समय कोई बोल रहे प्रभु जी हम तो गृहस्थ है, हमारे लिए तो कॉन्सेशन डिस्काउंट है ना। तो हाँ, आप डिस्काउंट ढूंढो, भगवान भी कृपा करते समय डिस्काउंट ढूंढेंगे, डिस्काउंट करके ही कृपा करेंगे। तो ये है विषय के महाप्रसाद के प्रति विश्वास हो गया और वेद धर्म ये सब लान के वो प्रसाद ले लिए। महाप्रभु कितना खुश हो गए, सार्वभौम कितना कट्टर हुए होंगे वो, लेकिन उन्होंने अभी प्रसाद के प्रति इतना विश्वास, मतलब भक्ति में इतना विश्वास आ गया। और एक प्रसंग है जहाँ पे प्रताप रुद्र राजा और सार्वभौम भट्टाचार्य वो उनके प्रताप रुद्र राजा के महल के छत में खड़े थे और जब बंगाल से भक्त गए, नवद्वीप से बंगाल से भक्त जगन्नाथपुरी गए थे, तो महाप्रभु सबको स्वागत कर रहे और प्रताप रुद्र राजा उनके महल में पहले इसका छत में टेरेस में खड़े होकर देख रहे, सब दूर से कौन कौन आ रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य दिखा रहे थे, बोलो वो देखो वो जो आ रहे वो है अद्वैताचार्य, वो देखो वो जो है वो नित्यानंद प्रभु है, वो है रामानंद राय, ऐसे सबको दिखा रहे थे, परिचित करा रहे, दूर से दिखा रहे थे। तो प्रताप रुद्र राजा सवाल पूछे, प्रश्न पूछे सार्वभौम भट्टाचार्य को कि शास्त्र का विधान ऐसे है कि जब धाम में जाना चाहिए, जाते हैं हम तीर्थ यात्रा कर, धाम में जाकर सबसे पहले उपवास करना चाहिए, पहले उपवास करना चाहिए और उसके बाद स्नान करना चाहिए। तो क्षौर कर्म मतलब नाखून काटना, शेविंग करना, ये सब करना चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब पहले जगह साफ होना चाहिए, उपवास कर साफ। इसलिए शेविंग करना और नाखून ये सब को बहुत गंदा कहा गया। आजकल बहुत भक्तों का भी बड़ा बड़ा बाल होता है और हिप्पी कल्चर हो जाता है, नाखून लंबा होता है, बोला लेकिन बोले नहीं, धाम में गया सबसे पहले नाखून काटो, शेविंग करो, साफ सुथरा रहो, उपवास करो, ये है नियम। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु के भक्त लोग यहाँ पे आके ना तो उपवास किए और ना तो शेविंग कुछ किए, सीधा जाके प्रसाद लेना शुरू कर दिए, सीधा खाना शुरू कर दिए। ये क्यों, इसका मतलब क्या है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले हाँ, वेदों में कहा गया, शास्त्र में कहा गया कि धाम में तीर्थ में जाके पहले उपवास करो, फास्टिंग करो और नाखून काटो, शेविंग करो। लेकिन यहाँ पे वो है वेदों का परोक्ष, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप में स्वयं महाप्रभु मौजूद, स्वयं भगवान मौजूद है, वो खुद के स्वयं के हाथ से सर्विंग कर रहे प्रसाद। वो शास्त्र का नियम है कि उपवास करो, ये करो, वो सब इनडायरेक्ट परोक्ष नियम है, निर्देश। और यहाँ पे स्वयं भगवान वो खुद के हाथ से सर्विंग कर रहे हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर प्रसाद। कौन सा नियम मानेंगे? वो मानेंगे, यह मानेंगे स्वयं भगवान दे रहे प्रसाद। तो समझा रहे कि ये जो है विधान है परमार्थ दृष्टिकोण है और स्मार्थ में अलग है भक्ति का दृष्टिकोण। क्या भक्ति का दृष्टिकोण क्या है? कुछ भी हो, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेध्यासुर एतयरेव किंकरः। हमेशा विष्णु भगवान याद रहे, कभी भी ना भूले उनको, यही मुख्य नियम है। बाकी जितना भी नियम हो शास्त्र में, सब कुछ ये नियम का मूल होना चाहिए, ये नियम का मूल होना चाहिए। तो कभी कभी नया भक्त समझ में नहीं आते, हाँ कुछ भी करो। एक भक्त था मायापुर में, नया ब्रह्मचारी बना, तो मेरा साथी मेरे रूम में था, न्यू भक्त प्रोग्राम करने के बाद अलग अलग रूम में था, मेरा रूम में था वो। तो हम एक दिन गंगा स्नान करने गए मायापुर में। ओके ठीक है, चलो गंगा स्नान में जाते। गंगा स्नान किया, मैं डूब दिया, डुबकी लगा के बाद मैं गायत्री किया। तो गायत्री किया, अभी उसको देखा वो डुबकी लगा ही जा रहा है, गायत्री वगैरह किया, वो डुबकी लगाया जा रहा है। खत्म किया, अरे क्या हुआ, कितना डुबकी लगा रहे? 108 डुबकी लगाना है। मैं गंगा का महिमा पढ़ा, प्रभु जी 108 डुबकी लगाना है। अरे पागल, ये हो जाएगा, बीमार हो जाओगे तुम, 108 डुबकी लगा रहे हो यहाँ पे। तो बाद में ऐसे रोज लगाते ऐसे, बाद में बीमार हो गया वो ऐसे। तो मतलब कुछ आके शुरुआत में बहुत उत्साह होता है, हम निर्जला करेंगे, और कुछ समय बाद जाके एसिडिटी है, ये है, वो है। तो ये समझना चाहिए, जिनका जो क्षमता है उसके अनुसार मैच्योरली करना चाहिए। जो सीनियर है, काउंसिलर है, उनके साथ परामर्श करके, वरना कभी भी कुछ भी नियम बना लिया और बाद में कर नहीं पाया। तो ऐसे होना चाहिए, स्मार्थ परमार्थ। एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर ये कहे कि ये पुरुषोत्तम महीने के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर लिखे, आर्टिकल लिखे हैं उसका महिमा के बारे में। तो दो चीज बोले भक्तिविनोद ठाकुर, वो ज्यादा समय नहीं बोले। एक तो है कि
तीन प्रकार के भक्त है, सनिष्ठ, परिनिष्ठ, निरपेक्ष। स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ, निरपेक्ष। तो स्वनिष्ठ मतलब क्या है, वो उनका धर्म पालन करेंगे, वर्णाश्रम धर्म नियम पालन करेंगे सब कुछ, और साथ साथ भक्ति भी करेंगे। और परिनिष्ठ मतलब क्या है, वो भक्ति में स्ट्रॉन्ग सीरियस है, भक्ति सीरियसली करें, भक्ति को मुख्य रूप से करेंगे, और साथ ही साथ धर्म गृहस्थ है, उनका नियम है, कुछ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी हो उनका धर्म में पालन करेंगे, भक्ति मेनली करेंगे। और निरपेक्ष भक्त मतलब जो बाकी नियम का कुछ ये नहीं, वो पूरा शुद्ध भक्ति ही करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे। तो ये तीन प्रकार के भक्त है। तो भक्ति को भी तीन प्रकार कहा गया है, गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति और केवला भक्ति। गुणीभूता भक्ति मतलब क्या है, उदाहरण देते, जैसे मान लीजिए एक ग्लास में दूध है, तो अभी ग्लास में दूध है, वो तो प्योर दूध नहीं मिलता, पता नहीं आपके यहाँ मिलता है या नहीं, हमारे वहाँ तो दूध है, मतलब कुछ तो मिलाते ही है, पानी मिलाते हैं, कम से कम जो जगह अच्छा है, कम से कम मायापुर में कम से कम पानी मिलाता है, बाकी जगह में तो और क्या क्या मिलाते पता नहीं। इसलिए मायापुर के बाहर जब ज्यादा दूध पीना बहुत डर लगता है, मायापुर में कम से कम ओके ठीक है, ज्यादा कुछ मिलावट नहीं करते, घोष लोग है, पानी मिलाते। एक बार एक घोष पीछे पड़ गया, मुझे दूध चाहिए, रास्ते में मिला, प्रभु दूध ले लो ना, दूध है दूध है दूध है, ले लो, मेरे पास तो अच्छा दूध है, बोल रहा है बार बार। मैंने बोला अच्छा दूध है, बोला हाँ, बोले कितना पानी मिलाया, बोले प्रभु पानी नहीं मिलाया, पानी नहीं मिलाते, बोले तो भी नहीं लेंगे, हम पानी वाला ही दूध लेते हैं, बोले नहीं लेंगे। तो फिर वो समझ गया कि मजाक कर रहा है, कि वो पीछे नहीं छूट रहा, फिर वो दूध लो दूध लो दूध लो, मैंने बोला पानी वाला है तो दो, बोले नहीं मेरा दूध में पानी नहीं है। तो दूध में पानी मिलाया, तो सवाल यह है कि कितना पानी मिलाया, अभी पानी में दूध मिलाया या फिर दूध में पानी मिलाया, है ना। समझ नहीं, यही भी एक कथा है, एक घोष था मायापुर में, और राजापुर में जगन्नाथ देव है हमारा, राजापुर जगन्नाथ, कौन कौन गए राजापुर दर्शन किए जगन्नाथ को। तो एक घोष था, वो राजापुर जगन्नाथ मंदिर में आके दूध देता था, लेकिन देख रहा है उसका दूध रोज फट रहा है, खराब हो रहा है दूध। तो वहां सिक्योरिटी गार्ड था, उसके साथ तो बात कर रहा था, क्या है रोज रोज मेरा दूध फट रहा है, दूध खराब हो रहा है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी भक्त था, उसने बोला दूध में तुम पानी मिलाते हो, बोले हाँ हम तो घोष है, थोड़ा तो मिलाना ही पड़ता है, वरना कैसे चलेगा। तो बोले तुम जगन्नाथ का दूध में पानी मिलाओगे, हाँ जगन्नाथ के दूध में पानी मिलाओगे तुम, तो कैसे होगा। बाद में बोले ठीक है नहीं। तो अगले दिन से और पानी नहीं मिलाया, दूध खराब नहीं हुआ, कभी भी खराब नहीं हुआ उसका दूध। जब पानी मिलाता था दूध खराब हो जाता था। राजापुर जगन्नाथ के बहुत सारे कथा है, एक के बाद एक स्टोरीज है, वो बहुत ही अलौकिक है, अद्भुत है, करते रहते लीला। तो दूध में पानी मिलाया है ना, अभी ग्लास में मान लीजिए दूध है, अभी यहाँ पे कितना दूध है कितना पानी है, मान लीजिए यहाँ पे 80% दूध है, 80% पानी है और 20% दूध है, मतलब पानी में दूध मिलाया, 80% पानी है 20% दूध है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, दूध मिश्र जल, मतलब जल में दूध मिलाया। क्या है, वाटर मिक्स्ड विथ मिल्क, वाटर मतलब पानी ही है, दूध मिलाया हुआ है, वाटर मिक्स्ड विथ मिल्क, या दूध मिश्र जल, ये कह सकते हैं। दूसरा है कि नहीं यहाँ पे 80% मिल्क है और 20% पानी है, तो क्या बोलेंगे, हाँ उल्टा बोलेंगे, जल मिश्र दूध, मिल्क मिक्स्ड विथ वाटर। और अगर 100% दूध है तो फिर शुद्ध दूध, 100% प्योर मिल्क। तो वैसे ही कहा जाता है कि भक्ति में कर्म ज्ञान मिलाया या फिर कर्म ज्ञान में भक्ति मिलाया। तो जहां पे मान लीजिए कर्म ज्ञान योग यही ज्यादा प्राधान्य है और भक्ति थोड़ा है, मतलब भक्ति भी कर रहा है साथ में, भक्ति भी करता है साथ में, तो उसे कहते हैं गुणीभूता भक्ति, मतलब कर्म ज्ञान योग इसका ही प्राधान्य, इसका ही महात्म्य, मतलब यही ज्यादा करते हैं कर्म ज्ञान योग, और साथ ही साथ थोड़ा भक्ति कर रहा है, तो वो है गुणीभूता भक्ति। और जहां पे नहीं हम भक्ति ही कर रहे हैं, भक्ति भी करते हैं और भक्ति ही करते हैं, डिफरेंस है या नहीं, हम भक्ति भी करते हैं और हम भक्ति ही करते हैं, है ना। ऑल्सो भक्ति एंड ओनली भक्ति
डिफरेंस है ना। तो दूसरा है कि नहीं, भक्ति ही करते, ओनली भक्ति, और साथ साथ जो है गृहस्थ है तो थोड़ा कर्म ज्ञान योग होता है, परिवार चलाना है होता है, साथ ही साथ हो रहा है, तो उसे कहते हैं प्रधानीभूता भक्ति, मतलब भक्ति प्रधान है। और जो निरपेक्ष मतलब 100% कर्म ज्ञान योग का कोई अपेक्षा नहीं, वो है निरपेक्ष, कोई अपेक्षा है नहीं। तो बलदेव विद्याभूषण उसको अलग तरीके से समझाते हैं, श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद के 24 घंटा समय है, 24 घंटा में हम कितना घंटा भक्ति करते हैं, कितना घंटा बाकी काम करते हैं। हम 2 घंटा हरि नाम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आधा घंटा पढ़ाई करते हैं और आरती करते हैं या नहीं, तो कितना हुआ, मान लीजिए 3 घंटा, कम से ज्यादा 3 घंटा कर रहे हैं भक्ति, उसके बाकी समय नौकरी करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ, यही कर रहे। तो हालांकि हम तो बोलेंगे नहीं, ये तो हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम भक्ति कर रहे हैं या नहीं वो बताया जा रहा है, तो फिर वो भक्ति में आ जाएगा, गुणीभूता भक्ति में, स्वनिष्ठ में। और प्रधानीभूता भक्ति मतलब नहीं, हम भक्ति ही कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ समय 2-4 घंटा हम परिवार चलाने के लिए कर रहे हैं। तो कुछ संप्रदाय में, जो 4 संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, कुछ संप्रदाय में ये स्वनिष्ठ या फिर गुणीभूता भक्ति को कहा जाता है कि ठीक है, आप ऐसे गुणीभूत वर्णाश्रम पालन करो और 100 जन्म लगेगा, भगवान को पाना 1 जन्म का बात नहीं, 100 जन्म लगेगा, आप धीरे धीरे एक के बाद एक जन्म लोगे, ऐसे धर्म पालन करोगे, वर्णाश्रम पालन करोगे, अपना धर्म मानोगे, धीरे धीरे होते होते बहुत जन्म के बाद हृदय शुद्ध होगा, भगवत दर्शन होगा, ये बोलते हैं कुछ संप्रदाय। और कुछ संप्रदाय बोलते नहीं, हम एक ही जन्म में भगवान को पाना चाहेंगे, प्रधानीभूता भक्ति, यही जन्म अच्छा से भक्ति करो और इस जन्म का अंत में ही भगवान को पालो, प्रधानीभूता भक्ति। मतलब उनके नियम में ऐसे कि गृहस्थ भक्तों को भी बोले आपका 8, 10, 12 घंटा साधना होना चाहिए, गृहस्थ को भी आप हरि नाम करो, पूज्य खास करके रामानुज संप्रदाय में ऐसे कहते हैं, गृहस्थ भी आप हरि नाम करो, पूजा करो, यज्ञ करो, शास्त्र पढ़ो, ये सब करते हैं, आपका 10-12 घंटे का रोज का साधना, और 2-4 घंटा बचता है वो आप परिवार चलाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ मेहनत करना है, करो ऐसे। और निरपेक्ष मतलब ब्रह्मचारी सन्यासी जो है निरपेक्ष, मतलब उनका और कोई अपेक्षा है नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि हमारे जो है ब्रह्मचारी सन्यासी मतलब निरपेक्ष भक्ति होना चाहिए, और गृहस्थ को कम से कम प्रधानीभूता में होना चाहिए, परिनिष्ठ में होना चाहिए। लेकिन हम अगर विचार करेंगे कि नहीं, हम ज्यादातर सनिष्ठ ही हो रहा है, तो हमारे संप्रदाय जो है ना, एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में कहते नहीं, वो पूरा जन्म का भी जरूरत नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, अल्पो दिने भावोदय होवे, विद इन ए फ्यू डेज, कुछ हमें इतना पावरफुल पोटेंट प्रोसेस दिया गया कि कुछ ही दिन में भाव आ जाना चाहिए भगवान के प्रति, साधु संग, भजन की अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा भाव, रुचि, ये सब होगा एकदम भाव में कुछ दिन में आ जाना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं इतना तीव्रता से करना चाहिए भक्ति। तो ये क्यों बता रहे ये सब प्रसंग, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो पुरुषोत्तम व्रत है, अलग अलग व्रत देते हैं, ये ज्यादातर स्वनिष्ठ लोगों के लिए, कि जो भक्ति भी कर रहे हैं, कर्म ज्ञान योग में ज्यादा महात्म्य है और साथ ही साथ भक्ति भी कर रहे हैं, तो ठीक है, चलो ये पुरुषोत्तम व्रत आ गया, दामोदर व्रत आ गया, ये करो भैया, मतलब ये एक क्या गया, ये एक डिस्काउंट दे रहे हैं, दिवाली का ऑफर, हाँ इसमें ये करो, एक प्रशंसा महिमा का, ये करो, ये मिलेगा, वो करो, वो मिलेगा, दिया जा रहा है दिवाली ऑफर जैसे। लेकिन जो परिनिष्ठित है, भक्त है और निरपेक्ष है, वो तो हमेशा ही भक्ति कर रहे हैं। जैसे अक्षय तृतीया, साल में एक दिन जो भी करेंगे अक्षय, लेकिन भक्ति में रोज अक्षय तृतीया है, भक्त के लिए 365 दिन ही अक्षय तृतीया है, क्योंकि भक्ति में आप कुछ भी करेंगे उसका विनाश है नहीं, जब भी करेंगे, आज भी अक्षय तृतीया है भक्तों के लिए, आज भी हरिनाम कीजिए, उसका कोई विनाश है नहीं। तो ये भक्तों का दृष्टिकोण है। तो इसका मतलब ये नहीं हमें भक्ति नहीं करना, ये पुरुषोत्तम व्रत वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम स्वनिष्ठ में ही ज्यादा है, कर्म ज्ञान योग में ही ज्यादा फंसे है, तो हमारे लिए व्रत वगैरह दिया गया। लेकिन जो परिनिष्ठित है और जो निरपेक्ष है, उनके लिए ये सब व्रत विधान का ये है ही नहीं। तो लेकिन ये सुन के अब ऐसे भी नहीं होना चाहिए, मैं तो परिनिष्ठ हो गया हूं, मैं निरपेक्ष हो गया हूं, अपने आप को ऐसे नहीं मानना चाहिए। मुझे पता है, एक
जयप्रद का स्वामी गुरु महाराज गुरुदेव, उनके एक शिष्य है, बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छा भक्त है। उनको मतलब गुरु महाराज बताते सबको व्रत करने के लिए, के बाद सबको उत्साह देते। उनको कहा कि तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है ये सब व्रत। उनको कहा था कि वो सचमुच वैसे एक भक्त है कि उस स्थिति में भक्ति करते हैं और हरिनाम ये करना है। तो खास करके ये जो व्रत है इसको बहुत ही उत्साह दिया गया। गुरुदेव बोले, सारे भक्त बोले कि व्रत करना चाहिए, लेकिन उसका ये भी समझना चाहिए कि हमारा मुख्य विधान है हरिनाम करना, भक्ति करना, प्रचार करना। तो प्रचार में और भक्ति में, सेवा में कोई त्रुटि या फिर कमी नहीं होना चाहिए। जैसे भी कथा सुना के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य थे, तो रोज बोलते थे जाके राधा मदन गोपाल, रोज प्रचार करने बोलते थे, ग्रंथ प्रचार में जाओ या हरिनाम में जाओ। तो एक ब्रह्मचारी थे, एकादशी के दिन गए नहीं प्रचार में। सरस्वती ठाकुर बोला तुम क्यों नहीं जा रहे हो एकादशी के दिन प्रचार में? बोले गुरुदेव मैं तो एकादशी करके आज बहुत ही फास्टिंग हो थक गया। तो सरस्वती ठाकुर बोले मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करके देता हूँ, दाल चावल खिचड़ी, तुम खा के एकादशी के दिन बोले जाके प्रचार करो। इसका मतलब ये नहीं हम रोज दाल चावल एकादशी का दिन खाना शुरू कर दिया कल से, नहीं। लेकिन मतलब समझना चाहिए इसका मतलब क्या है कि बहुत बार ये भी विधान में हमारा स्मार्ट मेंटेलिटी आ जाता है भक्ति में। अरे ये करेंगे वो मिलेगा, वो करेंगे वो मिलेगा, कुछ फल के प्रति हम इतना ललायित हो जाते हैं, ये वो इतना फल मिलेगा। लेकिन ये समझना चाहिए स्मार्ट में कभी कभी आता है ये सब, हाँ ये करो वो करो, लेकिन परमार्थ जो है रोज रोज अक्षय तृतीया है, हर मुहूर्त हमें भक्ति करना चाहिए, हर मुहूर्त करना चाहिए। जैसे एक भक्त को कोई ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा भाग्य में ऐसे कुछ है, तो हर सोमवार रामायण पढ़ो, हर सोमवार रामायण पढ़ो। उन्होंने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव मुझे ऐसे बोला। गुरुदेव बोले तुम हर सोमवार को रोज रामायण पढ़ो। ज्योतिषी के बारे में बोले हर सोमवार रामायण, बोले रोज रामायण पढ़ो तुम, हर सोमवार रामायण पढ़ो, वो है स्मार्ता। लेकिन रोज रामायण पढ़ो वो है भक्ति, है ना। तो भक्ति ऐसा नहीं कि हाँ पुरुषोत्तम महीना आया, एक महीना जोड़ लगा से कर लेंगे और उसके बाद नहीं, रोज हमारे लिए हर महीना पुरुषोत्तम महीना होना चाहिए। यही मुख्य विषय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम भगवान की, प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। उत्तम महीना एकदम उत्तम कहते हैं उसको ब्याह बारी तनी आगे क्यों नहीं बोला, ये तो क्या है? बोल दिया ना इतना कुछ कि बिया बारी वो जो है शादी वगैरह है, ये चातुर्मास में भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हालांकि भक्त विवाह कर रहे है ना, डिवोटेड पे शादी हो, लेकिन फिर भी शादी विवाह जो है वो कर्मकांड ही है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली जो है वो भौतिकी है। हरिनाम करना है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये जो विवाह है या फिर ये जो बाकी जो नियम है, ये सब में इसलिए कहते हैं कि वो भौतिक कार्यों के लिए करते हैं ना। हाँ ठीक है, हम विवाह करेंगे, संसार होगा, मेरा परिवार होगा। हालांकि भक्त शादी कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ठीक है भक्ति में करेंगे, जाएंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी उसमें वो मिश्रित है ना। इसलिए कहते हैं ये महीना छोड़ दो ना, ये महीने में ये सब मत करो, ये महीना ये भी मतलब आप भक्ति में इतना फोकस्ड रहो कि आपको टाइम ही ना मिले। एकादशी के दिन बोले क्यों निर्जला करो या फिर क्यों उपवास करो, क्योंकि आप हरिनाम में और श्रवण कीर्तन में इतना मग्न हो कि खाने का टाइम ही ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं कहा रहे मैंने खाया नहीं तो दुर्बल हो गया तो लेटे रहो, इसलिए हरिनाम ही किया नहीं या फिर श्रवण कीर्तन किया नहीं। उससे अच्छा तो अच्छा से पेट भर के खा के श्रवण कीर्तन करो। कोई एक भक्त जन्माष्टमी में, एक बार ऐसा जन्माष्टमी के दिन कुछ सेवा भी था, तो मैं देखा ऐसे कुछ निर्जला किया करते करते, मेरा 16 माला करते करते बहुत ही तकलीफ हो गया था। अरे क्या मैंने जन्माष्टमी किया। दूसरा भक्त देखा नहीं, बहुत शास्त्र प्रसाद लेके वो बहुत मजाक किया, बहुत श्रवण कीर्तन, लेक्चर में भी गया, सब कुछ किया। तो मैं देखा अरे दुर्बल हो गया पूरा निर्जला करके। जिनका जो क्षमता है, सामर्थ्य की चीज, तो जैसे श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, भक्तों को श्राद्ध करना चाहिए। कोई मर गया तो श्राद्ध करना चाहिए ना। महाप्रभु भी पिंडदान में गए थे, दिखाए थे।
लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ये बोले कि अगर कोई भक्त है, दीक्षित भक्त और श्राद्ध वगैरह कर रहे तो नाम अपराध कर रहा है वो। अगर कोई दीक्षित भक्त है और श्राद्ध आदि क्रिया करे तो नाम अपराध कर रहे हैं। मतलब क्यों नाम अपराध कर रहे हैं? मतलब वो जो श्राद्ध वगैरह करके जितना समय जा रहा है ना, उस समय में हरि नाम कर सकता था। मतलब वो भक्त वो सोच रहा है कि भैया अगर श्राद्ध आदि करेंगे तो फिर मेरा पिताजी को, इनको ये मुक्ति मिलेगा, ये होगा, वो होगा, वो सब सोच के कर रहे हैं ना। इसका मतलब इस भक्त को नाम के प्रति पूरा श्रद्धा है नहीं। वो उनका पिताजी के लिए पूरा हरि नाम कर सकता था, लेकिन हरि नाम की जगह में श्राद्ध कर रहा है। तो गोपाल भट्ट वो तो अभी, इसका मतलब ये नहीं कि सारे भक्त श्राद्ध करना छोड़ देंगे, नहीं, हम उस स्थिति पे भी है नहीं। वो उस मतलब जो निरपेक्ष उनके लिए बोला गया कि देखिए इतना ऊंचा भक्ति में है कि श्राद्ध आदि करने का भी उनका समय है नहीं, वो सब करने का समय है नहीं। जैसे माधवेंद्र पुरीपाद थे, वो तो ऐसे बोल दिए थे कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमः भो देव पितरश्च तर्पण विदो नाहम क्षमक्षम्यताम, कि हे संध्या वंदना मुझे क्षमा कर दो, मुझे समय नहीं है आपका संध्या वंदना करने के लिए। हे देवता आप सब मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मुझे ये समय नहीं, या फिर मेरे से होगा नहीं आपका उद्देश्य में कोई पूजा करे या फिर पिंडदान करे, या पितृपुरुष मुझे माफ कर दो, मैं आपका उद्देश्य में कोई पिंडदान नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मैं भगवान गोविंद को स्मरण करते करते, उनका नाम कीर्तन स्मरण करते करते इतना मग्न हूं, मेरे पास वक्त ही नहीं, समय ही नहीं है कि कोई पिंडदान करे या गायत्री मंत्र करे या फिर त्रिसंध्या वंदना करे, वो सब करने का भी समय नहीं है। वो इतने ऊंची स्तर में पहुंच गए कि भगवत स्मरण में ऐसा स्थिति में कि उनके बाकी चीज का जरूरत ही नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से बाकी कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन हम गृहस्थ है या फिर जो भी हम स्थिति में है, हमें तो बहुत कुछ है, तो हमारे लिए ठीक है, ये श्राद्ध भी है, ये है, तर्पण है, विधि विधान है, नियम है, व्रत है, लेकिन उद्देश्य एक लालच होना चाहिए भक्ति में, लोभ। हाँ एक दिन हम उस स्तर में पहुंचे, एक दिन पहुंचेंगे हम उस स्तर पे, जब हम भी उस स्तर में रहेंगे और कुछ जरूरत नहीं है, और हम इतना मग्न रहेंगे भक्ति में कि समय ही नहीं है बाकी चीज सोचने का। ठीक है, हरे कृष्णा। और एक लास्ट प्रश्न, जगन्नाथ कथा के लिए अभी तो उतना समय है नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए रहेगा वो। जगन्नाथ राजापुर में है और बहुत सारे कथाएं, पंकज अग्रवाल किताब लिखे है राजापुर जगन्नाथ, छोटा सा किताब, किसी के पास है वो तो उनके पास है, आप पढ़ के आइए, सबको सुनाइए। बहुत सारे हैं राजापुर जगन्नाथ की कथा, तो बहुत सारे हैं। एक बार ड्रेसिंग हो रहा है तो जगन्नाथ को ड्रेसिंग करा रहे थे राजापुर में जगन्नाथ को, तो पुजारी मोती का हार है ना पहनाते हैं, तो एक पहनाया, दो पहनाया, तीन पहनाया, उसके बाद और एक पहनाने गए और हार खुल के गिर गया नीचे, फिर पहनाए उठाए फिर गिर गया, फिर पहनाए फिर गिर गया, बार बार पहनाने गिर क्यों रहा है? तब आवाज आया, जगन्नाथ बोल उठे कि तुम्हें पता नहीं चलता कि मुझे तीन ही काफी है, तीन के ज्यादा नहीं चाहिए, भारी हो जाता है, मतलब तीन ही काफी है। और एक बार जैसे अभी ठंडी का ये है, ओरण षष्ठी है, ओरण षष्ठी के समय से ठंडी शुरू होता है, तो जगन्नाथ को ओरण षष्ठी का दिन से ही शीत वस्त्र पहनाया जाता है, गर्म वस्त्र पहनाया जाता है, उसके पहले नहीं, तो क्योंकि माना जाता है कि ओरण षष्ठी का समय से ठंडी शुरू हो गया, और शिव चतुर्दशी तक जगन्नाथ को उस समय चामर भी नहीं दिखाया जाता है, पंखा भी नहीं किया जाता है, और ठंडी वस्त्र पहना जाता है ओरण षष्ठी से शिव चतुर्दशी तक। तो उस साल क्या हुआ, ठंडी थोड़ा जल्दी आ गया, ओरण षष्ठी के पहले ही ठंडी आ गया, तो लेकिन नियम तो नियम है, ओरण षष्ठी का दिन से पहनाएंगे ठंडी का कपड़ा, तो जगन्नाथ को पहना ही नहीं ठंडी का कपड़ा। फिर पुजारी तो चादर वगैरह पहन के जा रहा था, ठंडी आ गया है ना, दिसंबर में आता है ओरण षष्ठी, तो चादर और शाल वगैरह पहन के पूजा वूजा कर रहा था, और रात को भी कंबल रजाई लेके सो रहा था। तो अचानक देखे क्या सपना आया, कि क्या आया, दरवाजा खटखट ठक 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 हो रहा है। अरे दरवाजा खोला, देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नीचे लेटे हुए हैं। तो जगन्नाथ बोल रहे, अरे तुम तो बहुत मस्त आराम से सो रहे हो, तुम्हारा रजाई कंबल लेके, मेरे कंबल कहाँ?
मैं ठंडा लग रहा है। तो पुजारी उठा नींद से, उठे भाग के जाके स्नान किया, रात को 1 बजे स्नान किया, फिर जाके कपड़ा पहन के जगन्नाथ का मंदिर रूम में गया, जाके फिर भगवान को ठंडी का कपड़ा कंबल वगैरह पहनाया। तो भगवान को भी ठंडी लगता है। और एक बार एक पुजारी था, वो इस्कॉन के पास आने के भी पहले पुजारी था, तो उतना पैसा नहीं था, तो उनका मन में इच्छा था मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, रथ यात्रा देखना चाहता हूँ, लेकिन पैसा भी नहीं था, कैसे जाएंगे। रात को जगन्नाथ का पूजा करके बाहर ही सो गए। अगले दिन सुबह उठ के क्या देखते हैं, क्या जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो ये कहा जगन्नाथपुरी है, क्या चल रहा है, रथ यात्रा चल रहा है, रथ यात्रा का दिन आ गया, स्नान यात्रा के समय रथ यात्रा, तो स्नान यात्रा किया, रथ यात्रा किया, बहुत खुश, रथ यात्रा जगन्नाथपुरी आ गए, कैसे आ गए पता ही नहीं। तो पूरा रथ यात्रा किया, दर्शन वर्शन सब कुछ किया, अभी घर लौटना है, मायापुर लौट के आना है राजापुर, अब कैसे आएंगे, पैसा तो है नहीं। तो पंडा को पूछा, रे क्या करे, बोले जिन्होंने तुम्हें लाया उनको ही बोलो, वही लेके जाएंगे। फिर जाके प्रार्थना कि हे प्रभु आपने लेके आ गया तो यहाँ पे आप लेके भी जाओ मुझे, मैं कैसे जाऊँ, वह घर पे मेरे घर वाले सब सोच रहे, चिंता कर रहे। तो उस रात फिर सोए जगन्नाथपुरी में। अगले दिन सुबह उठ के क्या देखा कि मायापुर पहुंच गए। तो फ्रीली जगन्नाथपुरी यात्रा हो गया, पैसा नहीं लगा। आप में से कौन कौन जाना चाहते हैं फ्री टूर जगन्नाथपुरी? तो बोलिए, जगन्नाथ चाहे तो लेके जा सकते हैं फ्रीली, फ्री टूर जगन्नाथपुरी का। और एक बार वही पुजारी, उस समय उतना पैसा भी नहीं था, और इस्कॉन के पास आने के पहले तो प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु आपका सेवा कैसे करे, पैसा भी नहीं है, धन भी नहीं है, क्या करे, आप ही व्यवस्था कीजिए। तो प्रार्थना कर रहा था, और तब बहुत आम का बागान है ना, वहाँ आम का पेड़ है, तो एक आम का पेड़ शाखा टूट के गिर गया नीचे, गिर गया नीचे। तो बाद में वो उस पेड़ का शाखा लकड़ी काट के बाजार में बेचा, तो जितना पैसा मिला 2-3 महीना सेवा हो गया जगन्नाथ का उस पैसा से। फिर 2-3 महीना बाद फिर पैसा खत्म, फिर प्रार्थना कर रहे, फिर पैसा नहीं है, तो जाके श्रृंगार कर रहे भगवान को, देखा जगन्नाथ के कपड़े के नीचे कुछ पैसा रखा हुआ है, और उस पैसा से जगन्नाथ का उस दिन का सेवा हो गया। ऐसे रोज जगन्नाथ का कपड़ा के नीचे कुछ पैसा मिलता था। तो हमें लगता है कि जगन्नाथ को हम पैसा डोनेशन कर रहे हैं, मैं इतना डोनेशन दिया प्रभु जी मंदिर में, जरूरत है भगवान को डोनेशन का, उनका से क्या पैसा उनके पास है नहीं, लक्ष्मीपति है वो, और हमें लगता है हमने 1000 रुपया दिया मंदिर में, दान किया। देखो उल्टा हमें ऐसे होना चाहिए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपने कृपा करके मेरा ये उपहार स्वीकार किया। हाँ, ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे जितना चाहिए मिल जाता था। ऐसे ऐसे होता था। जब 1971 था, उस समय युद्ध हो रहा था ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध चल रहा था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा मारामारी चल रहा था। तो वहाँ का जो पुजारी थे जगन्नाथ के, फटिक चक्रवर्ती, तो उनके लड़का नहीं था, उनके लड़कियां थी बहुत, 6-7 बेटियां थी, और बाजू में ही वहाँ पे मुस्लिम का गांव है, जाजापुर में मुस्लिम का बस्ती है, इलाका है। तो वो तो डर गए, क्या करे, हिंदू मुस्लिम झगड़ा है। तो वो चले गए राजापुर छोड़ के कटवा चले गए, उनका कोई रिश्तेदार है, वो कटवा चले गए, वहाँ रहने के लिए चले गए। कुछ दिन बाद वो राजापुर के मुस्लिम लोग ढूंढते ढूंढते कटवा पहुंच गए। बोले ये कहाँ है, ये कहाँ है, कहाँ है, ढूंढते ढूंढते वहाँ रिश्तेदार के वहाँ पहुंच गए। जाके बोला आप क्यों आ गए हमें छोड़ के, आप चलिए, लौट के चलिए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले अरे आप तो आ गए यहाँ पे, लेकिन आपका तो वो जो भगवान है वो छोड़ के आए वहाँ पे, हम रात को सो नहीं पाते। बोले कोई जोर जोर से पुकारते, बोला अरे मुझे कोई खाना दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे पानी दो, मैं प्यासा हूँ, कुछ खाने दो मुझे, कोई मेरा सेवा क्यों नहीं करता। जोर जोर से कोई चिल्लाते, हम रात को कोई नहीं सो पाते, इतना दिन से सोए नहीं रात को, हम आपको ढूंढ रहे थे। बोले आप, वो बोले नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, ये झगड़ा चल रहा है, ये लड़ाई चल रहा है। तो मुस्लिम लोग बोले आप चलो, हम आपका मंदिर पहरा देंगे, हम आपका घर पहरा देंगे कि कोई कुछ ना कर पाए। तो फिर वो फटिक चक्रवर्ती आ गए थे, और 1971 युद्ध के समय मुस्लिम लोग जगन्नाथ मंदिर पहरा दिए थे, फटिक चक्रवर्ती का घर पहरा दिए थे। राजापुर का मुस्लिम लोग भी बहुत श्रद्धा मानते हैं जगन्नाथ को, बहुत लोग आके जगन्नाथ को, उनका कोई पेड़ का आम आया, कटहल आया, जगन्नाथ को भोग लगाते, आके देते, उपहार देते जगन्नाथ को। मुस्लिम लोग भी बहुत मानते हैं जगन्नाथ को। एक मुस्लिम लड़की थी, उसका आंखें खराब हो गई थी, और बहुत उनका गरीब थे, पैसा भी नहीं था इलाज करे, तो छोटी सी बच्ची, तो उनका फैमिली वाले, परिवार वाले लेके आए जगन्नाथ के पास, कुछ चरणामृत दिलाए और बोले हे प्रभु आप देखो, आके 1 हफ्ता के अंदर अपने आप ठीक हो गया।
और एक मुस्लिम लड़की थी, बच्ची, वो आके खेल रहे थे, बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो बैठे मंदिर में, तो उसका पैर जगन्नाथ की तरफ रख के बैठे, ऐसे ऐसे बैठे थे जगन्नाथ की तरफ। तो लोग बोले, भक्त बोले, अरे ऐसा पैर मत रखो जगन्नाथ की तरफ, ऐसे अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। वो रखे थे ऐसे, बोले नहीं मैं नहीं मानता हूँ ये सब में। तो कुछ दिन में उसका पैर ऐसा हो गया था, वो लंगड़ा हो गई। अभी भी मतलब अभी है या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ समय तक भी थे, वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन पैर लंगड़ा जैसे ही थी, वो आते थे वहां पे। हमारे भक्त का एक लड़का है, वो खेल रहे थे, भक्त लोग खेलते बच्चे, तो बच्चे, छोटा बच्चा खेल रहा था मंदिर में, अचानक रो रो के आया, माँ 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 माँ, क्या हुआ क्या हुआ? तो बोले काल सोचे, बोले क्या हुआ, किसने मारा? तो कोई बोल नहीं रहा, बोले किसने मारा? तो फिर बोलने बोले बाप वो क्या, किसने मारा? तो बोले मैं मंदिर में खेल रहा था, अचानक देखा सुभद्रा के गले में एक हार है, बहुत सुंदर लॉकेट है, मैं सोचा वो ले लूं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो लेने गया, अचानक देखा बलदेव का वहां से एक बड़ा हाथ निकला, जोर से मुझे एक चाटा मारा, और मैं आके वहां से गिर के आके गिरा बाहर। उसका माँ बोला बलदेव का तो हाथ नहीं है, हाथ तो नहीं है। बोले नहीं नहीं मैंने देखा हाथ है ऐसे बड़ा सा हाथ निकला, और मुझे जोर से एक चाटा मारा, गोर के गिर के। वो भक्त अभी भी है, अभी भी है वो लड़का, अभी तो बड़ा हो गया, अभी भी है वो भक्त है। हाँ, तो ऐसे है, अद्भुत है। मायापुर आइए और राजापुर जाइए, जगन्नाथ को दर्शन कीजिए। जगन्नाथ सारे इच्छाएं पूरा करते हैं। बहुत भक्त के साथ और भी बहुत सारी लीला। ये तो एक बुक लिखा, और भी है, अभी दूसरा बुक लिखा जा रहा है, और भी उसके बाद भी जो कथाएं हैं। अभी भी रिसेंटली हुआ, हमारे एक नामहट्टे के महाराज है मायापुर में, भक्ति विलास गौरचंद्र महाराज। उनको डॉक्टर ने बोला कि उनका कुछ बीमारी हुआ, कि उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको अनार का जूस पीना चाहिए, पोमोग्रेनेट जूस पीना चाहिए रोज। तो वो कुछ बोले नहीं किसी को, डॉक्टर ने बोला उनको, कुछ किसी को बोले नहीं, ठीक है अभी रोज अनार का जूस मिलना ही है। तो वो डॉक्टर ने उनको बोला, उन्होंने भी कुछ किसी को बोलते, किसी को पता नहीं। तो यहाँ पे जगन्नाथ पुजारी को आके सपने में बोल रहे कि डॉक्टर ने गौरचंद्र महाराज को बोला अनार का जूस पीने के लिए, तुम लोग मुझे भूख लगाओ और उनको लखे दो जाके। तो डॉक्टर ने उनको बोला, जगन्नाथ बोले मुझे पहले खिलाओ, मुझे लगाओ भूख। उनको भी बहाना मिल गया, जगन्नाथ को बहाना मिल गया अनार का जूस पीने, बोले मुझे भी रोज रोज जूस लगाओ भूख, और महाराज को लेके दो जाके। तो ये रिसेंटली कथा है। और भी बहुत कथा है, भक्त अभी तो तब बताते नहीं, लेकिन पुराने कथाएं है, अभी कुछ बता रहे, कुछ लिख रहे, नया बुक लिखाया जा रहा है ऐसे, सेकंड पार्ट। तो राजापुर में जगन्नाथ, मायापुर में नरसिंहदेव, बहुत ही उनका अलग अलग लीलाएं है। नरसिंहदेव की भी बुक है, अलग अलग लीलाएं हुआ था उनका ऐसे। एक प्रभुपाद डिसाइपल थे, तो वो कुछ व्यापार बिजनेस करते थे विदेश में, तो उन्होंने आके प्रार्थना किया जगन्नाथ को, प्रभु मैं भक्त हूँ, मेरा इच्छा है, मुझे धनी बनना है, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप मुझे बिजनेस में लाभ करा दीजिए, मैं आपको दान करूंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं जितना भी पैसा मिलेगा मैं आपको परसेंटेज दूंगा, या जो बोला आधा दूंगा, ऐसे बोले बहुत आपको मैं दूंगा। तो उनका बहुत ही ये हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो दान भी किए मंदिर में आके। तो जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज बताते, तो बोले तुम्हारे पास अगर आध्यात्मिक इच्छा हो तो मायापुर में राधा माधव के पास मांगो, और अगर कोई भौतिक इच्छा हो जगन्नाथ के पास जाके मांगो, राजापुर में वो दे देते सब कुछ। लेकिन हाँ, वो भौतिक इच्छा मांगने के लिए उत्साहित नहीं किया जा रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि जगन्नाथ, उनका लीला ऐसे है, वो उनका जगन्नाथ के अभी रथ यात्रा आ रहा है सामने, रथ यात्रा के तो 9 दिन प्रोग्राम हर जगह, तो मुझे बुलाया जाता है अलग अलग जगह में। बंगाल में तो हर जगह रथ यात्रा हो रहा है अभी, और हर जगह में एक एक दिन जाते हैं। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ फिर जाजापुर जगन्नाथ की कथा ही बोलना शुरू करता हूँ, क्योंकि राजापुर के इतना मधुर है। तो जगन्नाथ, उनका रूप ही ऐसे है ना, वो बहुत छोटा बच्चा ऐसा है ना, बड़ा बड़ा आंखें करके दिखता है, हाँ कुछ चीजें देखता है। जगन्नाथ का आंखें भी इतना बड़ा है, आंखें में कोई पत्ती भी नहीं है, और ऐसे जैसे होता है ना, हाथ बढ़ाते हैं सामने बच्चे गोद में आने के लिए, एक मायालु होता है जगन्नाथ, जैसे मायालु आंखें है, बड़ा आंखें है, बड़ा मुंह है, हाथ ऐसे करके है, मान लो हमें
पास बुला रहे, आओ मेरे पास आओ, हाथ सामने बढ़ा के है। उनका लीला ही है ऐसे। मतलब जगन्नाथ तो आए ही थे, किसके लिए आए थे? शबर लोगों के लिए आए थे ना, उनके प्रति कृपा करके। मतलब नीचे जाति, पूरा भारत में या जहां पे भी हो, आपका मुक्तिनाथ भी हो, हर जगह में धाम है, तीर्थ में, हालांकि हम क्या बोलते हैं कि गुण होना चाहिए, लेकिन हर जगह में कहते हैं कि जन्म के अनुसार जो ब्राह्मण है वो लोग ही पूजा करते हैं। ब्राह्मण लोग ही पूजा करते हैं। आप रंगनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, मुक्तिनाथ जाइए, ब्राह्मण लोग ही पूजा करते हैं। जगन्नाथपुरी भी ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, लेकिन वहां पे जो अभी देखिए ये जो 15 दिन होगा स्नान यात्रा आएगा, अगले महीने है ना स्नान यात्रा, अगले महीने नहीं, जुलाई में है, एक ही महीना, 1-1.5 महीना बाकी है। स्नान यात्रा के समय क्या बोला, जगन्नाथ बुखार हो गया उनका। तो अभी देखिए कोई आदमी व्यापार करता है, बिजनेस में, पूरा दिन बिजनेस में लगा हुआ है, या नौकरी में जाता है, तो परिवार वाले कंप्लेन करते हैं, आप तो हमें समय नहीं देते हो, हाँ, बाहर वालों के साथ पूरा दिन समय बिताते हो, है ना। हर परिवार में यही कंप्लेन है, माताएं कंप्लेन करते हैं, हमें समय नहीं देते हो, बाहर ही समय देते हो। जब व्यापार, नौकरी करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, पैसा कमाना होता है, बाहर रहता है। लेकिन जब उस आदमी बीमार होता है, बुखार होता है, तब कहाँ रहता है? घर में ही होता है। और तब किसके साथ संग ज्यादा होता है? परिवार वाले के साथ। तब बाहर वाले एंट्री नहीं की, ये बीमार है, बेस में लेटा है। और परिवार के जो लोग हैं, पत्नी है, माँ है, बच्चे है, तब उनके आसपास रहते, उनको सेवा करता है। उस समय नाजुक हो जाता है, खाना भी खाने, उनको उठा के, अच्छा खाना उठा के खिला दो, पट्टी लगा दो, या शरीर ये करके दो, कपड़ा बदल के दो, मतलब इतना नाजुक हो जाता है। तो जितना सबसे नजदीक करीबी लोग है ना, वो उनका सेवा करते हैं, वो उनका ये करते हैं, जो अंतरंग है, बाहर के लोग नहीं आते। तो जगन्नाथ पूरे साल ब्राह्मणों से सेवा लेते हैं, पूरे साल ब्राह्मण लोग सेवा कर। लेकिन ये जो 15 दिन होता है ना, ये 15 दिन जगन्नाथ का सेवा कौन करता है? जो दयितापति बोलते हैं, मतलब वो ब्राह्मण ने, शबर जाति, वो लोग आकर जगन्नाथ के लिए वो जो मेडिसिन बना, पाचन बनाते हैं, जगन्नाथ का सेवा। कुछ 15 दिन ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है जाने का अंदर। तो दयितापति जो है, जो दयितापति कहा जाता है, जो ब्राह्मण नहीं है, वो लोग ये 15 दिन जगन्नाथ का विशेष, मतलब अंतरंग से, मतलब बीमार है जगन्नाथ, बुखार है, उस समय सेवा कौन करता है? मतलब तो फिर परिवार वाले कौन हुए? अंतरंग कौन हुए? जो ब्राह्मण नहीं है, जो नीचा जाती है। तो ये कितना, मतलब उनका जगन्नाथ के जो लीलाई है, उनका आविर्भाव प्रकट ही इतना दया से। महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण के विरह में राधा रानी, वो जो भाव है ना, वो है महाप्रभु। कि भगवान के विरह में भक्त, महाप्रभु भक्त रूप में थे ना, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण, तो भक्त होके भगवान को ढूंढ रहे, वो है महाप्रभु। जगन्नाथ कौन है? राधा रानी के विरह में कृष्ण। रुक्मिणी, रोहिणी माता सुना रही थी ना ये सारे कथाएं, वृंदावन कथा, तो वो सुन के ब्रजवासी का विरह में कृष्ण का ये रूप जगन्नाथ हो गया। तो मतलब कृष्ण भक्तों का विरह में भगवान, वो है जगन्नाथ। मतलब कितना और दयालु है। भगवान के विरह में भक्त हो तो ठीक है, दया है, दया करके महाप्रभु आए, महावतार ने बता, लेकिन भक्त का विरह में भगवान ऐसे हो गए थे वो व्याकुल विरह में। तो इसलिए इतना दयालु रूप है उनका। उनके पास जो भी मांगेंगे दे देते। राजापुर में अभी भी एक, राजापुर जो मंदिर है ना, उस मंदिर के बगल में एक ये इलाका है, उसे कहते हैं शरडंगा या शबरडंगा। मतलब वो भी कथा है, बड़ा कथा। मतलब वो 7th सेंचुरी में कुछ एक असुर राजा था यवन, वो आके अटैक कर रहा था जगन्नाथपुरी मंदिर में। तो जगन्नाथ सपने में आके पुजारियों को बोले, तुम लोग हमें लेके चले जाओ। तो वो जगन्नाथ को लेके आ गए, जगन्नाथपुरी से कहा राजापुर। तो जगन्नाथपुरी के जो मूल विग्रह है ना, वो मूल विग्रह जगन्नाथपुरी से राजापुर आ गए थे। और बहुत साल, 100 साल राजापुर में उनका सेवा पूजा हुआ था। और 100 साल जगन्नाथपुरी मंदिर बंद था। जगन्नाथपुरी में मंदिर दरवाजा बंद था, क्योंकि वो जगन्नाथ कहाँ थे? राजापुर में थे। और शबर लोग उनको लेके आ गए थे, और इधर ही बस गए थे। जगन्नाथ मंदिर राजापुर में ही बस गए थे, इसलिए अभी भी वहां पे वो गांव का नाम है शरडंगा या फिर शबरडंगा, अभी भी वो है। तो राजापुर को कहा जाता है अभिन्न जगन्नाथपुरी। राजा मायापुर में सब कुछ है, नवद्वीप धाम में। आप सब नवद्वीप धाम में आइए और नवद्वीप का परिक्रमा कीजिए। बहुत बहुत भक्त जाते हैं और सिर्फ मायापुर मंदिर में जाके देख के आ जाते हैं, या योग भी एक दो जगह में। लेकिन नवद्वीप का 9 द्वीप है,
नरसिम्हा है, वृंदावन ठाकुर का घर है, सारंग मुरारी घर है, अलग अलग जगह में अलग अलग क्षेत्र है। तो जैसे बावनपुकुर बाजार होके जाते हैं ना, तो बावनपुकुर बाजार में कहते हैं मथुरा, एक चांद का देखा जगह था वो कम्स, तो अभिन्न मथुरा है बावनपुकुर बाजार। हम तो उधर सब्जियां खरीदने जाते हैं, लेकिन वो है मथुरा। और राजापुर है जगन्नाथपुरी। ऐसे अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग हर जगह। महाप्रयाग, प्रयाग में कुंभ मेला हुआ था, वो भी हरिहर क्षेत्र महाप्रयाग है। जैसे हर एक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी जगह मायापुर धाम में है। तो वृंदावन के 12 वन सब कुछ मायापुर नवद्वीप धाम में है, नवद्वीप मंडल में है। तो एक बार समय लेके आइए। ऐसे तो गौर पूर्णिमा के पहले होता है 7-8 दिन, अगर उस समय पॉसिबल है तो बेस्ट उस समय आइए। तो वो लोग कैंपिंग करते हैं ना आपका नेपाल में, ट्रेकिंग करते हैं, हाइकिंग करते, कैंपिंग करते हैं, जाके तंबू लगा के कोई जगह सो जाओ कोई पहाड़ में। तो हम 7 दिन का कैंपिंग करते हैं, स्पिरिचुअल कैंपिंग 7 दिन का। मायापुर से निकलते पैदल, हाइकिंग भी करते लोग, ट्रेकिंग करते, तो हम भी ऐसे वॉकिंग करते हैं 7 दिन का। निकलो और चल के एक एक द्वीप में एक एक रात रहना, तंबू लगा के वहां पे खटिया लगा के वहां पे सो जाओ तंबू लगा के। और वहां पे सारे भक्त नहाते, वहां पे बाथरूम बनाते, स्नान करो, फिर चलना शुरू करो सुबह उठ के अलग जगह कथा। मतलब कैंपिंग करने का पसंद है लोगों को, इधर जाओ रुको। तो हम 7 दिन का कैंपिंग होता है साल में, एक साल। नवद्वीप में हर एक अलग अलग महाराज आते हैं, कथा बताते हैं नवद्वीप धाम के महिमा, अद्भुत कथा है। कलियुग में कहा गया कि कली काले तीर्थ सब अत्यंत दुर्बल, नवद्वीप धाम मात्र परम प्रबल। कलियुग में कहा गया बाकी जितना तीर्थ है ना, धाम है ना, उसका महिमा दिन दिन लुप्त होगा, कम हो जाएगा। हम भी यहाँ पे धाम दर्शन कर, मुक्तिनाथ आए हैं, गंडकी, बहुत धाम है। तो लेकिन बोला गया कलियुग में जितना दिन आगे बढ़ेगा, बाकी जितना धाम है सबका महिमा लुप्त, एक समय होगा बाकी धाम नहीं रहेगा ही नहीं, लुप्त हो जाएगा, इतना कली का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन नवद्वीप धाम का महिमा बताया गया, और जितना दिन जाएगा उतना महिमा बढ़ेगा, उतना महिमा बढ़ेगा। हो सकता है ऐसे भविष्य में हो लोग, जैसे आप वृंदावन जानते सब हो सकते हैं भविष्य में होगा सब लोग धाम मतलब नवद्वीप, और कोई धाम रहे ही ना। भक्तिवेदांत ठाकुर ऐसे कह रहे हैं। तो अद्भुत है। और जैसे कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे अवतारों में श्रेष्ठ कौन है या मूल कौन है? कृष्णा, स्वयं भगवान। सर्व अवतार अवतम स कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान। वैसे ही सारे धामों में से कहा जाता है नवद्वीप धाम। नवद्वीपे गौरचंद्र होइला उदय, नवद्वीप सर्वतीर्थ अवतंश है। सारे तीर्थ का अवतंश है नवद्वीप, मतलब नवद्वीप से ही बाकी सारा तीर्थ आता है। अभी प्रयाग है आपका, या पुष्कर है, अलग अलग धाम अलग अलग जगह में है ना, आपका मुक्तिनाथ अलग अलग जगह धाम अलग अलग जगह में है। तो कहा जाता है क्या कि बाकी जो धाम है ना बाकी जगह में, वो है उनका ब्रांच ऑफिस, लेकिन उनका हेड ऑफिस नवद्वीप धाम में है। नवद्वीप धाम से जाके अलग अलग धाम में बस गए वो धाम। मेनली सारे धाम नवद्वीप में ही थे, नवद्वीप से निकल कर अलग अलग जगह में सबको कृपा करने के लिए गए, लेकिन मूल रूप में नवद्वीप में है। एक ब्राह्मण थे, उनका इच्छा था कि पुष्कर दर्शन करें, चलते 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 नवद्वीप में आए और उनको एक सपना आया कि तुम यहाँ पे रह जाओ। तो वो रह गए वहाँ पे भजन करने के, बूढ़ा हो गए, लेकिन फिर उनका मन में इच्छा आया, अरे मैं तो पुष्कर दर्शन कर ही नहीं पाया, मेरा इच्छा था हो ही नहीं पाया। तो वो खेत के पुष्कर दर्शन किया नहीं। तो उस दिन वो सो रहे थे, रात को सपना आया तुम कल उठ के यहाँ पे तालाब में नहाओ तो तुम्हें दर्शन मिलेगा। तो सुबह उठ के वो पुष्करणी है, पौंड में स्नान करने गए, तब क्या देखा सामने पूरा पुष्कर आ गया, पुष्कर धाम सामने प्रकट है नवद्वीप में। तो वो ब्राह्मण बोलने लगे कि आप इतना कृपालु दयालु है कि मुझे कृपा करने के लिए आप इतना दूर से इधर आ गए। पुष्कर कहाँ पे? पुष्कर राजस्थान में है। मतलब राजस्थान से यहाँ पे आ गए मुझे दर्शन देने के लिए। तो पुष्कर तीर्थराज पुष्कर हंसने लगे, बोले नहीं मैं तुम्हें कृपा करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। बोले क्या? ऐसा नहीं कि मैं वहां से यहाँ पे आया हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, मैं यहाँ से वहां गया था, यही मेरा जगह है, तुम यहीं पे हो पुष्कर में। तो अभी भी पुष्कर है नवद्वीप में, हमारे गोद्रुम द्वीप मध्वद्वीप है, पुष्कर का दर्शन होता है वहां पे। सारे तीर्थ सारे धाम नवद्वीप धाम में प्रकट है।
और अभी भी जो जगन्नाथ राजापुर का जो विग्रह है ना, वो विग्रह का भी कथा है। वो विग्रह तो वो एक भक्त थे जगदीश गांगुली, तो सारे लोग जा रहे थे जगन्नाथपुरी, हर साल जाते रथ यात्रा में। तो उनका भी मन में इच्छा था जाने के लिए, लेकिन वो अंधे हो गए, मतलब देख नहीं पाते थे, बुरा हो गए, बीमारी हुआ, आंखों का रोशनी चला गया। तो गांव वाले उनको लिया नहीं साथ में, बोले आप तो देखते नहीं, हम जंगल से जाते हैं, आपको नहीं लेके। ये 500 साल पहले का कथा है, 16th सेंचुरी में। तो वो तो बहुत उदास हो गया, नाराज, मतलब दुखी हो गए, मुझे नहीं लेके गया, मैं जगन्नाथ को दर्शन नहीं कर पाया, जगन्नाथ का रथ को स्पर्श नहीं कर पाया, तो मेरा जीवन वृथा है, मैं कल जाके मेरा प्राण ही दे दूंगा, मर जाऊंगी। जगन्नाथ सपने में आके बोले तुम कल जाना, जाके गंगा में स्नान करो, और मैं दारू ब्रह्म का रूप में आऊंगा, तुम्हें स्पर्श करूंगा, तुम मुझे लेके आना। बोले मुझे कैसे पता चलेगा, बहुत तो लकड़ी तो बहुत पानी में बह के आता है, आप कौन सा लकड़ी हो, कैसे समझेंगे। तो बोले मेरा स्पर्श होते ही तुम्हारा आंखों का दृष्टि आ जाएगा वापस। तो ठीक ठीक कल नेक्स्ट दिन उठ के वो स्नान करने गए गंगा में, और प्रार्थना कर रहे थे। एक लकड़ी, एक ऊंट का लॉग आके उनका सर पे लगा, और तुरंत ही उनका आंखों का दृष्टि आ गया। तो फिर वो जगदीश गांगुली उस लकड़ी को लेके आए, आके फिर अलग अलग लोगों को बुलाए जो जो विग्रह बनाते हैं। तो वो कोई नहीं बना पा रहा था। जगन्नाथ सत्यनारायण बोले कि कोई नहीं बना पाएगा, वहां पे बाजू में एक गांव में एक काठ मिस्त्री है जो डेटी बना सकता है, उसके पास जाओ, वही बना सकता है मेरा। तो लेकिन बोला वो काठ मिस्त्री जो है उसका शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, इसलिए वो बनाना नहीं चाहेगा। तुम उसको राजी कराओ, उसको मनाओ, और उसको बोलो अगर मेरा विग्रह बनाएगा तो फिर उसका बीमार चला जाएगा। कुष्ठ रोग तो बहुत ही, अभी तो लोग तो ठीक है नहीं हो बीमारी, लेकिन पहले होता था, बहुत ही खराब बीमारी है। मतलब शरीर गल जाता था, बहुत ही बॉयल्स आता था, बहुत ही मतलब कीड़े जन्म होता था शरीर में, और अंग विकृत हो जाता, विकलांग हो जाता है कुष्ठ रोग में। लोग तो रखते ही नहीं, जब कुष्ठ रोग होता था ना किसी को, गांव से निकल देते, गांव से जंगल चला जाए, गांव से निकाल देते थे। ऐसे कुष्ठ रोग थे, टच करेंगे कॉन्टेजियस था। तो उस ढूंढ ढूंढ के उस काठ मिस्त्री को निकाला और बोला तुम बनाओ विग्रह। बोले नहीं, मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं अपवित्र हूँ, मैं कैसे भगवान के खाए, और मैं पूरा शरीर में इतना दर्द हो रहा है, कैसे बनाएंगे, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, कैसे बनाएंगे। बोले नहीं, जगन्नाथ बोले आपको ही बनाने के लिए, आप बनाओगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। फिर मनाया उनको। वो उसका जो हाथुरी है ना, हाथुरा भी पकड़ नहीं पा रहा था, इतना मतलब कमजोर था और इतना दर्द हो रहा था, बहुत कष्ट करके बना रहा था। फिर बोले नहीं बनाऊंगा। फिर वो जगदीश गांगुली साथ में ही थे, उनको राजी करवाया, बनाया। तो बहुत कष्ट हुआ, कष्ट करके बनाया उनका विग्रह। जब बनाया ना तब उनका कुष्ठ चला गया, बीमारी चला गया, एकदम शक्ति आ गया। तो सवाल यह है कि भगवान को अगर उनका कुष्ठ ठीक ही कर देना था, पहले भी कर सकते थे ना, कि पहले तुम्हारा कुष्ठ में ठीक कर देता, उसके बाद तुम मेरा विग्रह बनाना, ऐसे हो सकता था ना। लेकिन नहीं, पहले तुम मेरा विग्रह बनाओ, फिर तुम्हारा कुष्ठ ठीक होगा। क्या सिखाते हैं हमें कि हम भक्ति में आए, इसका मतलब है नहीं भगवान से त्रिताप दूर कर देंगे, बस नहीं, त्रिताप रहेगा, कर्म फल रहेगा, उस कर्म फल में रह के तुम मेरा भक्ति करो, ये रहेगा। तो और बाजू में बोला, फिर जगन्नाथ सपने में बोले कि वहां पे और एक नीम का पेड़ है, उस नीम का पेड़ से तुम बलदेव सुभद्रा का विग्रह बनाओ। तो फिर बनाया गया। तो मतलब अभी राजापुर का जो विग्रह है ना डेटी, वो स्वयं भगवान बह के आए थे, स्वयं पानी में बह के आए थे। तो उनको भी हम स्वयं भू कह सकते, मतलब स्वयं ही आए थे, उस काष्ठखंड से बनाया था, हालांकि बनाया गया था, और स्वयं भगवान बताए थे कौन सा लकड़ी से बलदेव सुभद्रा बनाया जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। आज तो आपका हरिनाम जप का समय चला गया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। Thank you.